أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان. آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان. آپ بھی خیریت رکھے جس طرح چل رہا ہے آپ لوگوں کے پاس. میں ابھی نیوز ہی دیکھ رہی تھی. اچھا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین. اور ہمارے لیے بہتری کے راستے نکالے انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے. شروع کرتے ہیں کلاس کو. آپ لوگ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں اور میں خود بھی ویٹ کر رہی تھی. اصل میں میری فجر آج کل بہت جلدی ہو جاتی ہے، 4 بجے ہماری فجر ہو جاتی ہے. اس کے بعد میرے پاس 2 آورز ہوتے ہیں آپ کی کلاس میں. تو ابھی بھی لوگ نہیں آئے، دیکھیں کتنا ٹائم ہے. اور چلیں میں بک شیئر کرتی ہوں، ہم شروع کرتے ہیں. آج ہم پیچھے سے تھوڑا ریوائز کریں گے پچھلا لیسن اور پھر آگے چلیں گے. ہمارا کچھ لیسن رہ بھی گیا تھا نا، پچھلے لیسن کا کچھ پارٹ رہ گیا تھا نا. پوائنٹس ٹو ریمبر رہ گئے باجی. ہاں وہی رہ گئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ہم نے یہ بھی نہیں کیا تھا. یہ کیا تھا یہ والا میں نے شیئر کیا آپ لوگوں سے. اقرا وقت یہ کر لیا تھا. اچھا پوائنٹس ریممبر کرتے ہیں پھر ہم پیچھے سے کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہم نے نہیں کی، یہ والی ایکسرسائز بھی ہم نے نہیں کی ابھی، کوسین والی بھی نہیں. ہمارا کافی پارٹ رہتا تھا لیکن میں نے صرف یہ آپ لوگوں کو کروا دیے تھے، کچھ ورڈز کروا دیے تھے، یہ مجھے یاد ہے، یہ بتایا تھا. ہم پوائنٹس ریممبر پہلے کر لیتے ہیں، وہ اچھا ہوتا ہے پہلے کر لیں تو گرامر کے کچھ رولز پتہ چل جاتے ہیں، پھر آسانی ایکسرسائزز کرنے میں. تو پڑھیں آپ. طاہر عبداللہ آپ لے لیں مائک، پڑھیں تھوڑا. ٹھیک ہے باجی. Points to remember. In this lesson, we learned the number 3 to 10 with a masculine noun following them. The word for one is wahidun and it's follow the noun as an adjective. Example, one book, kitabun wahidun. اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ 1 اور 2 کا بتا رہے ہیں. پہلے یہ کہ 1 کے بعد جو ہے وہ نمبر جو ہوتا ہے یہ اس کے بعد جو ہے نا دا ورڈ 1 اینڈ یہ فالو کرتا ہے جو دوسرا ناؤن وہ ایز اے ایڈجیکٹو ہوتا ہے، جس طرح کتابن واحدن تو 1 بک. تو جیسے الہٌ واحدٌ آتا ہے نا قرآن مجید میں، پڑھے آپ نے کبھی الہٌ واحدٌ؟ تو الہٌ کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے. اور ایڈجیکٹو کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا تنوین والے اور یا الف لام والے جو ورڈ ہوتے ہیں ایڈجیکٹو کے علاوہ وہ ناؤن ہی ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. ایڈجیکٹو تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے نا، تو یہ ایڈجیکٹو ہے. اور اس کے الگ اس کے علاوہ جتنے بھی تنوین اور الف لام والے لفظ ہوں گے وہ سارے کے سارے ناؤن میں ہی آ جائیں گے. تو جیسے واحدن کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹو ہے، تو یہ بعد میں آئے گا. ایڈجیکٹو ہمیشہ بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے ناؤن آتا ہے. تو واحدن بھی اسی طرح یوز ہوتا ہے، جیسے کتابن واحدن، اخن واحدن ہے نا. تو یہ آپ کا واحدن مذکر ہے، کتاب بھی مذکر ہے، الہٌ مذکر ہے، واحدن بھی مذکر ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 کے لیے آگے پڑھیے. the word for 2 is isnan and this also follows a noun as an adjective. Example, 2 books, kitabani isnanin. ہاں تو یہ جو ہے آپ کو اس کو سین کی طرح نہیں نکالا کرے، اس کو تھوڑا نا سا کی طرف جائے. اس کا جو مخرج ہے نا وہ تھوڑا نرمی سے ادا ہوتا ہے، سختی سے نہیں. سین کی آواز نہیں آنی چاہیے، سا. تو اس میں آپ جو ہے ہاں اسنانی، تو یہ الف نون کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسنانی تو یہ بھی ایڈجیکٹو کے طور پہ، یعنی 1 اور 2 کا جو نمبر ہے یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز ہوتا ہے. کتابانی، اب کتابانی کس سے بنا ہوا ہے؟ کتابن سے بنا ہوا ہے، اس کی ڈوئل فارم ہے. اور اس سے کیا بنا ہے؟ اسنانی اس کے آگے آیا ہے کیونکہ 2 کتابیں. تو یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ آ رہا ہے اور یہ ناؤن کے طور پہ آ رہا ہے. یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ آیا ہے، یہ ناؤن کے طور پہ آیا ہے. اور اس کے بعد جتنا بھی ہے نا جتنے بھی آ رہے ہیں وہ
अलग तरीके से आते हैं. मतलब मुदाफ बन के आएंगे. हाँ, वो मुदाफ मुदाफिला की शक्ल में आएंगे. 3 to 10 जो है ये मुदाफ मुदाफिला की शक्ल में, और ऑपोजिट आएंगे. ऑपोजिट आएंगे. अगर ये मुन्नस होगा अदद तो ये जो मादूद होगा ये आपका मुज़क्कर होगा. चलिए पढ़िए आगे, इसमें क्या है. जी, But अब इसके अंदर ये usually, बता रहे हैं हाँ, the word nanin is omitted because the dual form is enough to suggest the meaning of two, but isnanin is used for emphasis. नंबर, अच्छा इसमें बस यही बताया इन्होंने कि यहाँ पे दो का इसलिए यूज नहीं किया कि क्योंकि ये ड्यूल है, तो ड्यूल का मतलब ही दो होता है ना. जैसे किताबानी नानिन तो दो किताबें, तो ये टू का वर्ड उन्होंने बोला है कि टू बुक्स हो गई ना ये, जबकि हमने नहीं किया इसके अंदर. ये एम्फिसिस के लिए आता है. ये जो आपका वाहिद अखुन वाहिदुन लगाते हैं ना, तो अखुन का मतलब तो एक भाई होता है ना, किताबुन का मतलब एक किताब होता है. बट ये आगे जो वाहिदुन का लफ्ज लाते हैं ना एडजेक्टिव के तौर पे, ये एम्फिसिस के लिए होता है, उसमें ताकीद पैदा करने के लिए. अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है यानी एक ही है, ठीक है. और इस्नानी यानी दो, और ये भी किसी के आगे आता है, पीछे किताबानी का मतलब दो किताबें होता है, अखवानी का मतलब होता है दो भाई. बट आगे इस्नानी का लफ्ज लगाते हैं कि ये ताकीद के लिए, ठीक है, एम्फिसिस के लिए. यहाँ पे बताया ना एम्फिसिस के लिए लगा रहे हैं. अच्छा, दो बात पूरी हो जाती है, किताबानी से पता चल जाता है कि दो हैं, लेकिन फिर भी आगे दो लगा के एम्फिसिस किया जाता है. हाँ, ठीक है. Number 3 to 10, these numbers are used as mudaf. Example, 3 books, salasatu kutubin, 4 houses, arba'atun buyutin, 5 pen, khamsatu aqlamin, 10 men, ashratu rijalin. तो अब इसमें 3 से लेकर 10 तक जो गिनती है उसकी ये वाली उसकी शक्ल होती है. अच्छा, वो तो यहाँ पर इस्नानी में बताया था कि किताबानी जब लिखना होता है तो आगे इस्नानी लाना जरूरी नहीं होता. अगर आप ला रहे हैं तो वो ताकीद के लिए ला रहे हैं, ठीक है. ली अखवानी इस्नानी, लेकिन वो लाते नहीं है, ज्यादातर उसको ओमिट कर देते हैं. वाहिद का फिर भी लाते हैं, लेकिन ये मुसन्ना वाला नहीं लाते, सिर्फ किताबानी कह देते हैं. लेकिन वैसे गिनती में देखें तो वाहिद एक को बोलते हैं, इस्नानी दो को बोलते हैं, ठीक है. और आगे क्या आ जाता है, सलासा आ जाता है, अरबा आ जाता है, खमसा आ जाता है, फिर आगे इस तरह पूरी गिनती आके आखिर में अशरा. इसको अशरा नहीं पढ़ना, अशरा पढ़ना, ठीक है ना. इसके ऊपर जैसे खमसा है ना, तो यहाँ सुकून आ रहा है तो इस पे सुकून नहीं देना, अशरा नहीं करना, इसको अशरा पढ़ना है. एक दफा सही सीख लें, ठीक है, एक दफा सही सीख लें. अच्छा, उसके बाद वो बता रहे हैं कि द नाउन दैट denotes the thing numbered. हाँ पढ़िए. The noun that denotes the thing numbered is called मादूद. वही बता रहे हैं, अदद के बाद वाला जो नंबर आता है मतलब उसके बाद वो मादूद होगा. 3 students went out. खरजा सलासतु तुल्लाबिन. अच्छा, इसमें अब ये बता रहे हैं कि अदद क्या होता है. अदद तो नंबर होता है ना, जैसे ये वाला है ना, तो इसमें अदद जो है ये अदद है. पहला वाला क्या है, अदद है, ये नंबर है, ठीक है. 3 4 5 ये अदद है. और ये क्या है, ये महदूद है. महदूद वो होता है जिसको गिना जाए. महदूद किसको कहते हैं, जो बाद वाला होता है, जिसकी गिनती की जाती है, किताबों की गिनती की जा रही है, वो महदूद है. महदूद, उनको महदूद. इस तरह ये अदद प्लस महदूद जब मिलता है तो कौन सा मुरक्कब बनता है, मुरक्कबे अददी बन जाता है. हाँ, इजाफी तो बन रहा है, लेकिन इस मुरक्कब को अददी कहते हैं. वो तो उसकी शक्ल है ना, जो इजाफी है ना, वो तो उसकी शक्ल आ रही है, उस फॉर्म में तो उसने आना है. बट इसको अदद प्लस मादूद को दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मुरक्कबे अददी कहते हैं. लेकिन शक्ल उसकी जो होती है वो मुदाफिला की शक्ल में होती है. इस पे अलिफ लाम तनवीन नहीं होता, ये मजरूर होता है. अच्छा, अब यहाँ पे यही बताया कि मादूद क्या होता है, जो बाद वाला होता है. जैसे सलासतु तुल्लाबिन में सलासतु अदद है, तुल्लाबिन मादूद है, जिनको गिना जा रहा है वो स्टूडेंट्स हैं, और खराजा फेल है. अच्छा जी, अब इसको करें जरा. खराजा सलासतु तुल्लाबिन, खराजा सलासतु तुल्लाबिन
اس کو کیا کرنا ہے باجی؟ جملہ اس- فعلیہ ہو گیا نا. ہاں تو اس میں بتائے نا یہ فیل ہے، یہ کیا بن رہا ہے، ثلاثۃ طلاب. ہاں یہ فعل ہے اور ثلاثۃ طلاب یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اور جو ہے نا عدد معدود مرکب عدد ہی بنے گا کیونکہ نمبرز آ گئے نا یہاں. ہاں تو اس کو گنتی کو لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے نا. اگر ادھر مذکر ہے تو ادھر مؤنث لگانا ہے، ٹھیک ہے. ادھر گول تا والا آئے گا، ادھر اگر گول تا والا نہیں آ رہا تو ادھر گول تا والا آئے گا، اور اگر ادھر گول تا والا آ گیا تو پھر ادھر آپ کا بغیر گول تا کے آئے گا. یہ یاد رکھنا ہے. مثلا یہاں پہ اگر ہم طالبات کر دیتے ہیں طالبات، تو وہاں پر کیا ہو جائے گا، یہاں پر عدد کیا ہو جائے گا، ثلاثہ ہو جائے گا. ثلاثہ کے آگے سے ہم گول تا ہٹا دیں گے تو ثلاثہ طالبان. یہ اور لیکن ہوگا مرکب اضافی کی شکل ہوگی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح لکھا جائے گا، اس کو مرکب عددی کہتے ہیں. اچھا جی، تو اس کے بعد کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا؟ باقی لوگوں میں سے کوئی کوشچن ہے؟ اچھا میوٹ کر لیں. بس یہ پوچھے کہ 3 to 10 تک ہے نا؟ 3 سے 10 تک ہے یہ والی شکل، ٹھیک ہے. اچھا میوٹ کر لیں باقی لوگ. اچھا یہاں پہ خرج فعل بنے گا اور اس کا فائل کیا. جب بھی آپ فعل دیکھیں تو آپ کو فائل ڈھونڈنا ہے، اس کا ڈوئر ڈھونڈنا ہے، اس کا سبجیکٹ ڈھونڈنا ہے. سبجیکٹ کیا ہے؟ تو اس کا سبجیکٹ کیا ہوگا خرجہ کا؟ تو لاب ہوں گے نا باجی. تو لابو نہیں ہوگا، یہ پورا مرکب جو ہے نا، یہ جو آپ کا مرکب عددی جو ہے. ارم آپ اپنا میوٹ کریں گی، آپ کی پوری ریکارڈنگ خراب کریں گے. مجھے خود میوٹ کرنا پڑے گا ان کو. آپ میوٹ رکھیں پلیز. اچھا جس کے اوپر دمہ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ سبجیکٹ ہے. ثلاثہ کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے، اس کا فائل ہے، اس کا ڈوئر ہے اس فعل کا. اور پھر مرکب اضافی بنا کے ہم پورا بھی بنا دیتے ہیں کہ چلو پورے کو ہم ڈوئر بنا دیتے ہیں یا سبجیکٹ بنا دیتے ہیں. دونوں کو ملا کے ہی ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے. تو خرجہ فعل ہے اور یہ اس کا فائل سمجھ لیں. فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ فائل ہے. اس میں آپ دیکھیں تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جو جملہ اسمیہ ہے. یہ اسمیہ ہے. اب اس میں دیکھیں فی اربعتی کیا ہے؟ اربعۃ بیوت، تو وہ ہو گیا مرکب عددی، مرکب اضافی ہو گیا، اور یہ فی جو ہے وہ. اچھا یہ اب آپ دیکھیں تو اربعتی بیوت جو ہے یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو فی سے ملٹیپلائی کریں گے، رائٹ. تو یہ پورا کیا بن جائے گا؟ مرکب جاری بن جائے گا. پورا مرکب جاری بن جائے گا. بس یہ مرکب جاری ہی ہے. دیکھیں آپ یہ جملہ نہیں ہے. ان فور ہاؤسز یہ فریز ہے. ہاں یہ جملہ نہیں ہے، یہ اوپر والا سینٹینس تھا، ٹھیک ہے نا. یہ نیچے والا بھی سینٹینس ہے، بٹ یہ سینٹینس نہیں ہے، یہ فریز ہے. تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے فی اربعتی کو آپ خبر بنا لیں مقدم اور اس کو آپ مبتدا بنا لیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں بنے گا نا. نہیں بنے گا. بیوتن خبر مبتدا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. تو مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو اب آگے یہ والا دیکھیں تو اس میں یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. تو اس کا فاعل اور مفعول کدھر ہے؟ رأیت خمسۃ رجال. تو رأیت اس کے اندر جو ہے وہ فعل ہے نا، ورب ہے اس کے اندر. ہاں اس کا فاعل ہے، فاعل ہے. دیکھیں رأیت فعل ہے، فاعل. ہاں میں فائل ہو گیا. پلیز میوٹ کریں باقی لوگ، تھوڑا سا کرنے دیں ہمیں. پھر آپ سنیں ذرا اس کو غور سے، بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے کلاس میں. تو رأیت جو ہے اس کے اندر ہی آپ کا فاعل ہے، کیونکہ باہر کوئی مرفوع اسم نہیں آ رہا، کوئی مرفوع آگے نہیں آ رہا ہے اسم. تو اس کے اندر ہی فاعل ہے. تو وہ کیا فاعل ہے؟ آئی. رأیت I saw میں نے کیا دیکھا؟ یہ خمسہ کے رجال. ہاں تو یہ جس پہ زبر آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خبر. وہ نہیں سوری، وہ کیا ہوتا ہے جس پہ زبر آتی ہے؟ مفعول ہوتا ہے.
ठीक है ना. खबर का जुमला, खबर का ताल्लुक जो होता है वो जुमला इस्मिया से होता है, मुब्तदा खबर. जुमला फेलिया में क्या होता है, फाइल ढूंढना होता है. फेल तो आपको नजर आ जाता है, फिर आपने फाइल ढूंढना होता है. फाइल कभी आपको बाहर नजर आता है, जैसे यहाँ पे आपको बाहर नजर आया था, दम्मा लगा हुआ था ना, तो ये बाहर था. अब यहाँ पे दम्मे वाला कोई वर्ड नहीं है, तो फाइल इसके अंदर ही है. ठीक है, और वो आपने बताया अना फाइल है. ठीक है, और यहाँ खमसत पे जबर आ रही है, तो ये मफूल है. तो मैंने देखा क्या, 5 आदमियों को. आई सॉ 5 men. मैंने 5 आदमी देखे. समझ आ गया आपको. तो इस तरीके से जुमला फेलिया में आपको क्या ढूंढना होता है, फाइल और मफूल ढूंढना होता है, और जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर ढूंढनी होती है. जब आपको पता चल जाए कि ये जुमला इस्मिया है, तो उसमें मुब्तदा और खबर ढूंढनी होती है. अच्छा जी, आगे पढ़िए. Note in Kam Samanu Haza. What is the price of this? There is an omission. The word omitted is rialan or any other word denoting monetary unit. ये आपने बताया था ना कि समानु जो है इसके ऊपर तनवीन नहीं है, तो ये मुदाफ बन के आया है, इसलिए हम इसको जो है वो तमीज नहीं बोलेंगे. कम के बाद तमीज आता है ना, तमजीज नहीं बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, तमजीज के बारे में थोड़ा सा, एक तो मैंने बताया था कि ये वाहिद होती है हमेशा. जैसे रियालन है ना, रियालन को आप देखें, जो ओमिट कर दिया गया यहाँ से. कम रियालन समनु हाजा था असल में, लेकिन उसके लगाने की जरूरत नहीं थी, उसको ओमिट कर दिया गया. ठीक है, तो असल जुमला ये था, कम रियालन समनु हाजा. तो ये रियालन क्या है, कम के बाद आ रहा है, वाहिद आ रहा है, मंसूब आ रहा है. ठीक है, और नकिरा आ रहा है. मंसूब और नकिरा, ये 3 इसके अलामात हैं. ठीक है. अब इसको तमयीज क्यों कहते हैं? शक्ल तो इसकी वाहिद होगा, ये मंसूब होगा और नकिरा होगा, जैसे रियालन है. अच्छा, जैसे अखन है. ठीक है, उख्तन है. तो ये जो फॉर्म है ना, ये उसकी होती है, किसकी? तमयीज की. कम के बाद जो आता है, कम अखन. अच्छा, कम उख्तन. अच्छा, अब इसको तमयीज क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी मुझे आया था किसी का. अगर आप में से वो मौजूद हैं सिस्टर, तो तमयीज जो होता है ना, जैसे मैं अभी दुकान पे जाऊं और दुकान वाले को मैं बोलूं कि 2 किलो दे दो या 2 दर्जन दे दो, तो क्या समझेगा? कुछ समझ आएगा उसको? नहीं, क्या दे दो. हाँ, नहीं, मतलब अब वो बोलेगा ना कि पागल हो, कुछ बताओ भी आगे, क्या चाहिए? 2 दर्जन क्या चाहिए? मेरे पास तो बहुत सारी चीजें, अंडे भी हैं, केले भी हैं, क्या चाहिए हैं? तो वो जो मैं आगे उसको बताऊंगी ना, 2 दर्जन अंडे दे दो या 2 दर्जन केले दे दो, ठीक है, या 2 किलो चीनी दे दो, तो वो जो चीनी और अंडे और वो सब मैं लगा रही हूँ ना आगे 2 किलो के आगे, ठीक है, वो आपकी तमयीज होती है. तमयीज होती है, वो तमीज करती है सारी चीजों के अंदर कि मुझे क्या चाहिए, मुमय्यज करती है, मुमय्यज का लफ्ज. और वो उसको दुकान वाले को समझ आता है कि अच्छा मुझे क्या चाहिए. जैसे आप किसी दुकान पे जाएं, उसको बोले मुझे 2 गज दे दो या 2 मीटर, आज गज तो खत्म हो गए, 2 मीटर दे दो, तो वो क्या कहेगा? क्या 2 मीटर दे दूं, कॉटन दूं, कितनी तरह की चीजें होती है ना दुकान में, कितनी तरह के कपड़े होते हैं, लॉन होते हैं, क्या चाहिए आपको? 2 मीटर आपको कौन सा कपड़ा चाहिए? तो वो जो मैं आगे बताऊंगी ना, वो उसका क्या होगा, 2 मीटर मुझे कॉटन दे दो. वो कॉटन जो है वो तमयीज है. ठीक है, आप समझे तमयीज का क्या मतलब होता है? बहुत सारी चीजें हैं, उनमें तमीज करके तमीज करनी है और बताना है कि क्या ये मुझे ये वाली चीज चाहिए. तो कभी भी जुमला अधूरा नहीं छोड़ते. 2 किलो या 2 लीटर या 2 मीटर, ये इस 2 फरलांग या 2 कुछ भी इस तरह की 2 माइल्स आपको जरूर बताना है. तो आगे उसके कुछ लगाना है, वही तमयीज होती है. तो वो क्या है फिर आप ये जो आपने रियाल लन लगाया ना, कम के बाद रियाल लन लगाया ना, इसको तमयीज इसीलिए कहते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ आप कम समन हाजा बोलते हैं तो बात समझ में नहीं आती. कम समन हाजा, इसकी कीमत क्या है? या तो आप किसी चीज की तरफ इशारा करेंगे
یا پھر اس کا نام لیں گے کہ اس کی کتاب کم کتابن ثمنہ، اس طرح سے کچھ لگائیں گے نا، کم کتابن ثمنہ ھذا، کم ریالن ثمنہ، اس طرح سے کچھ نہ کچھ لگانا ہے۔ تو یہ جو آپ کا واحد منصوب اور یہ نکرہ آتا ہے، یہ آپ کی تمجیز ہوتی ہے، اس کی شکل یہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ آئے گا تو وہ تمجیز نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پہ ثمنہ آ گیا نا، تو یہ تو آپ کا بھی اس کے اوپر تنوین ڈلی، یہ نکرہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، اور منصوب بھی نہیں ہے، اور واحد تو چلو ہے ہی ثمنہ۔ لیکن اگر یہ ثمنن ہوتا نا تو پھر بات مان سکتے تھے کہ چلو بھائی یہ آپ کم ثمنن لگا دیتے، اگر اس کو اس طرح کر دیتے، ثمنن کر دیتے، تو یہ کم کے بعد آتا تو اس کو ہم کیا کہتے، تمجیز کہہ دیتے، کم سنن۔ لیکن تو ثمنہ ھذا ہے تو یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ یہ آپ کا اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، اس کو آپ مضاف بنائیں گے، اس کو آپ مضاف الیہ بنائیں گے۔ یہ مجرور ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا یہاں پہ۔ تو اصل میں یہاں پہ ریالن جو ہے وہ omit کیا ہوا ہے۔ The word omitted is ریالن or any other word denoting۔ جی بولیے۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ مضاف کے بعد کچھ بھی آ جائے، جیسے یہ اس میں اشارہ آ گیا ہے، کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی وہ مضاف الیہ بنے کچھ گا۔ بھی دیکھو، کچھ بھی آ جائے، جیسے آپ کتاب من ھذا ہے نا، اب من آ گیا نا، جی کتابوں کے پر الف لام اور تنوین نہیں آ رہی نا، تو لازم وہ جی مضاف بالکل، بنے گا، مضاف بنے گا، ہاں کتاب من۔ اب یہ اس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، یہ اسی شکل میں رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے، لیکن یہ مرکب اضافی بن گیا، ٹھیک، کتاب من صحیح، یہ مرکب اضافی بن گیا آپ کا۔ ھذا کو مبتدا بنائیں گے اور کتاب من کو کیا بنائیں گے، خبر بنائیں گے۔ اچھا صحیح، یہ ہو گیا سب، ابھی آپ کا لاسٹ والا کمپلیٹ ہو گیا نا، جی اینی ہو ادر گیا، ورڈ، ٹھیک ہے صحیح ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ ورڈ میں نے پڑھا دیے تھے لاسٹ ٹائم، ان کو آپ دوبارہ دیکھ لینا، یہ لاسٹ ٹائم میں جی پڑھا کے گئی تھی سارے، اور ہم نیا لیسن شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کے۔ چلیے آ جائیں۔ ابھی سب سے پہلے ہینڈ ریز تھا، آئی تھنک میں دیکھتی ہوں ابھی بھی ریز ہے کہ نہیں، کون تھی، نام سے پہچانتی ہوں، یاسمین آ جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھیے۔ کیسے ہیں استاذہ؟ جی جی لیلہ یا سلمہ افی فضل کی طالبتم من الصینی والیابانی۔ من السینی ہے یا سینی ہے؟ ایک منٹ میں زوم کرتی ہوں، جی من الصینی والیابانی۔ اچھا اس کا میننگ آپ نا اتنا سلو پڑھا کریں کہ آپ کو میننگ ڈائریکٹلی سمجھ میں آ جائے، سننے والے کو بھی سمجھ میں جی آ جی جی جائے اوکے اور خود کو بھی سمجھ جی، میں آ صحیح جائے، صحیح، ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ ماشاءاللہ سے سٹیج میں ہیں آپ لوگ۔ تو لیلہ کیا کہہ رہی ہیں، یا سلمہ افی یا فصلی کا سلمہ طالبات، افی فضل من الصینی والیابانی۔ کیا میننگ ہوا، ذرا سے جلدی سے بتا دیں۔ ایک منٹ، افی فضل، کیا آپ طالبات کیا کہتے ہیں چین اور جاپان سے ہیں؟ اس کلاس کی نہیں سمجھ آ رہی مجھے۔ افی فصلی ہو فصلی گیا کا کلاس، طالب، ہاں افی فصلی کی یہ الگ ہے۔ کیا آپ کی کلاس میں کیا آپ کی کلاس میں فیمیل کیا اسٹوڈنٹس آپ کی کی بات کلاس ہو رہی میں ہے، کیا فیمیل آپ کی کلاس میں چین اور جاپان سے اسٹوڈنٹ ہے سے اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹ، طالبات ہیں، طالبات میں؟ ٹھیک ہے آگے۔ نعم ہاں، فی فصلنا خمس طالبات من الصین واربع طالبات من الیابانی وثمانی طالبات من انڈونیشیا۔ ہاں ہماری کلاس میں 5 طالبات چین سے ہیں، 4 طالبات جاپان سے ہیں اور 8 طالبات انڈونیشیا سے۔ آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ مرکب عددی ہے اور مرکب اضافی کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا یہ محدود ہے، یہ عدد ہے، پہلا والا عدد ہوتا ہے، یہ نمبر ہے، اور یہ محدود ہے، اس کو گنا جا رہا ہے۔ اب جب یہاں پہ مؤنث ہو گیا تو یہاں پہ کیا ہو گیا، مذکر ہو گیا آپ کا، مذکر، ٹھیک ہے۔ خمسۃ آیا تھا نا پہلے، خمسۃ طلابن، جب یہاں لڑکے تھے تو یہاں جی خمسۃ جی آ رہا تھا، اب یہاں پہ لڑکیاں ہو گئی ہیں طالبات، تو یہاں پہ خمسو ہو گیا، تو یہ گنتی اسی طرح عربی میں چلتی ہے۔
تو یہ بھی 3 سے لے کے 10 تک ہی سیم اسی طرح چلے گی, اور باقی جو اوپر ہوں گے 2 نمبر وہ واحد اور اسنان, ٹھیک ہے نا, اسنانی وہ آپ کے واحد اور وہ ہوں گے. چلیے آگے پڑھیے. لیلہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیلہ وفی فصلنا 3 طالبات من الہندی و6 طالبات من الفلبینی و7 طالبات من الکویتی. اب وہ اپنی کلاس اور کے ہماری students کی. کلاس جی اور ہماری کلاس میں 3 طالبات انڈیا سے ہیں اور 7 اور 6 ہیں بھول گئی. ستو. سات. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, میں بھی اس میں بہت کنفیوز ہوتی تھی, اس لیے میں نے پھر پتہ کیا کچھ نہ کچھ آپ جیسے یاد کر لیں. سب اسماواتن ہوتا ہے نا, تو آسمان کتنے ہیں, 6 یا 7 ہیں؟ 7 ہے نا. تو سب آ کا مطلب ہو گیا 7 ہے نا. تو یہ ستو جو ہے یہ کیا رہ جائے گا, پھر 6 رہ جائے گا. ستا تم. ہاں میں 6 اور 7 میں کنفیوز ہی ہوتی ہوں. جی جی میں اب یاد رہے گا انشاءاللہ. میں بہت کنفیوز ہوتی ہوں, میں ابھی بھی ہوتی ہوں, پھر میں یہ یاد کرتی ہوں, پھر مجھے یاد آتا ہے. اچھا یہ اچھا ایک اور بھی نمبر اس سے ملتا جلتا ہے, 9 کا نمبر, تسعتو. اس میں تا پہلے آ رہی ہے تو اس میں بھی کنفیوز ہوتا ہے بندہ. تسعتو ہوتا ہے یا تا پہلے آ جائے تو وہ 9 ہوتا ہے, اور تا بعد میں ستو ہو تو ستا تو ایام ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ستتو ایام آتا ہے. ایام مذکر ہے, جمع ہے, اور یہ مضاف الیہ ہے, اور ستتو یہ مذکر ہے تو ستتو آتا ہے یہاں پہ. کتنے دنوں میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو؟ 6 دنوں میں. ستتو ایام, یہ مذکر اور یہ مؤنث, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, یہ مؤنث ہو گیا تو یہ مذکر ستو ہو گیا, یہ ستتو. چلیں آگے پڑھیں. جی وسط تو طالبات من الفلپین, اور 6 طالبات فلپین سے ہیں اور 7 کویت سے ہیں. طالب علم. جی سلمہ کم اختن لک یا لیلہ, کتنی میم اختن کیا ہے نا, کم کے بعد اختن آیا, واحد آیا, نکرہ آیا, منصوب آیا. یہ آپ کی تمجیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو تمجیز کہتے ہیں. کتنی بہنیں ہیں تمہاری؟ اگر وہ کہتی اگر وہ کوشچن کرتی کم لکی یا لیلہ, تو لیلہ کہتی کیا بول رہی ہو تم, سمجھ نہیں آ رہی مجھے, کم لکی یا لیلہ, تو یہ تو کوئی جملہ نہ ہوا نا. تو یہ جو جملے کی وضاحت کر رہے ہیں نا, وہ آپ کا کیا تمجیز کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. چلیے جی تو آپ کی کتنی بہنیں ہیں یا لیلہ؟ لی 3 اخواتین, میری 8 بہنیں ہیں. وکم اخن لکی, اور آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ لی 5 اخواتین, میرے 5 بھائی ہیں. سلمہ اب لکی 3, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ والا اخواتین مذکر ہے, گول تا پہ نہیں جانا, ٹھیک ہے. یہ اخن کی جمع ہے, ٹھیک ہے. جی اخن مذکر ہوتا ہے تو یہ بھی مذکر ہے, ٹھیک ہے. اور خمسطو جو ہے یہ مؤنث ہے. چلیں آگے. سلمہ لکی 3 اخواتین و 5 اخواتین. سسٹر اس کو آپ بار بار غلط پڑھ رہی ہیں, آپ نے اوپر بھی غلط پڑھا تھا. میں نہیں اخواتین, جی اخواتین و 5 اخواتین, میری 8 بہنیں اور 5 بھائی ہیں. 8 3 8 ہوتے ہیں. نہیں سوری 3 سوری جی 3. آگے 3 جی. لیلہ نعم وکم اخن و اختن لکی, اور آپ کے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں؟ یہاں پر بھی یہ تمجیز ہے, یہ تمجیز ہی ہے, یہ بھی اور یہ بھی دونوں تمجیز ہیں. بس یہاں سے کم ہٹا دیا ہے, 2 دفعہ کم لانے کی ضرورت نہیں تھی نا, تو ایک ہی دفعہ رکھا ہے. وَكَمْ أَخًا وَكَمْ أُخْتًا لَكِ, اصل جملہ تھا 2 دفعہ کم تھا, لیکن انہوں نے 1 دفعہ ہٹا دیا. یعنی جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ تمہاری کتنی بہنیں اور کتنے بھائی ہیں, تو 2 دفعہ کتنے بول دیں یا 1 ہی دفعہ بول دیں تب بھی جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے.
2 दफा बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं, हम बोल देते हैं तुम्हारे कितने बहन भाई हैं, तो 2 दफा बोलने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हारे कितने भाई और कितनी बहनें हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह का उसलूब है ये, इसमें भी आपको 2 दफा कम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलें आगे। जी सलमा, ली अरबातु इख्वतिन व अरबाउ अख्वातिन। अखवात सिस्टर, अखवातिन। सॉरी आप अख्वातिन। रिकॉर्डिंग सुनिएगा आप कैसे पढ़ रही हैं ना, ये देखें, इसको तो दोनों को आपने ली इक्वल पढ़ना है। अरबातु इख्वतिन व अरबाउ अख्वातिन। हाँ, जी, इसको लंबा करना है, आप इसको लंबा नहीं कर रही, और इनको दोनों को अखवातिन। मैं दोबारा ये सेंटेंस पढ़ती हूँ। हाँ मैम पढ़। जी। ली अरबातु इख्वतिन व अरबाउ अख्वातिन। अब सही है? आप इसको लंबा ना करें, इन दोनों को लंबा ना करें, ठीक है, इनको छोटा करें और इसको लंबा करें, वाह को लंबा करें। अख्वातिन। आप खा को लंबा करते हैं, अख्वातिन। आपकी गलती पता है कहाँ हो रही है, आप खा को लंबा करेंगे, जी जी। खा को लंबा नहीं करना, इन दोनों को इक्वल रखना है। अखवातिन, अखवातिन, अख्वातिन। हाँ, अख्वातिन। हाँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना ऐसे ही आपका हो जाएगा। आगे। मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। लैला ली ज़मीलतुस मुहा खदीजतु लहा समानियतु इख्वतिन व समानी अखवातिन। मेरी ज़मील फ्रेंड हुई ना, क्लासमेट। मेरी क्लासमेट, उसका नाम खदीजा है। उसके 8 भाई और 8 बहनें हैं। माशाल्लाह। चलें 16। ओके, समानिया किसको कहते हैं? ये मुअन्नस है, ठीक है, ये स्नान ना बनाइएगा, ये अलग वर्ड है। स्नान का मतलब 2 होता है और ये 8 है, ठीक है। और ये समानियतुन मुअन्नस होता है, और समानियुन जो होता है ये आपका मुज़क्कर होता है, ये मुज़क्कर है समानियुन। समानियुन मुज़क्कर है और समानियतुन मुअन्नस है। जब यहाँ पर आपका मुअन्नस आया तो ये मुज़क्कर आया है, जब यहाँ पे मुज़क्कर आया तो ये मुअन्नस आया। अभी आपसे करवाएंगे, आगे करवाएंगे एक्सरसाइज आपसे। चलिए कोई नेक्स्ट सिस्टर आए। फौजी आप आ जाए, जरा पढ़ें थोड़ा सा। जी वालेकुम अस्सलाम। तमारीन इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। सलासु तालिबातिन, 3 तालिबात। सबउ तालिबातिन, नहीं इधर से आए ना, 7। यहाँ से आए ना। अच्छा। सलासु तालिबातिन, 3 तालिबात। अरबउ तालिबातिन, 4 तालिबात। खम्सु तालिबातिन, 5 तालिबात। सित्तु तालिबातिन, 6 तालिबात। सबउ तालिबातिन, 7 तालिबात। समानी तालिबातिन, 8 तालिबात। तिस्उ तालिबातिन, 9 तालिबात। अशरु तालिबातिन, 10 तालिबात। अच्छा, इसमें से अदद क्या और मादूद क्या है? सलासु अरबउ अदद हैं और तालिबातिन मादूद है। ये सारे अदद है जो पहले लिखे जा रहे हैं, ठीक है, और ये वाले जो हैं ये मादूद हैं। अच्छा, फिर इनकी शक्ल क्या है, कौन सा मुरक्कब बना रहे हैं ये आपस में? मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरह ये मुरक्कब अददी बना रहे हैं और शक्ल मुरक्कब इज़ाफ़ी की है। हाँ, शक्ल वेरी गुड माशाल्लाह। और देखें, अब इसमें पहले हमने तुल्लाबुन पढ़ा था, ठीक है, तुल्लाबिन था, यहाँ पे हमेशा जमा आता है, वाहिद नहीं आ सकता। यहाँ पे ये सब जमा में आ रहे हैं, कभी मुज़क्कर आ रहे हैं, कभी मुअन्नस आ रहे हैं, और मजरूर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वाहिद नहीं ला सकते। तो महदूद हमेशा क्या होगा, जमा में होगा, और जमा जो होगी वो या तो मुज़क्कर की होगी या मुअन्नस की होगी, और मजरूर होगी क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका उसका ऑपोजिट होगा, अगर यहाँ मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर आ रहे हैं। सलासु, पहले हमने सलासतु तुल्लाबिन पढ़ा था, अब हम सलासु तालिबातिन करें। अच्छा, अरबाउ, खम्सु, सित्तु, सबउ, ये सारे क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? समानी, तिस्उ और अशरु, ये सारे मुज़क्कर हैं क्योंकि ये मुअन्नस है, ठीक है ना मैम? समानी पे दम्मा इसलिए नहीं है कि आखिर में छोटी आ रही है। या के ऊपर जब दम्मा आए ना
तो फिर उसको जी। साकिन कर देते हैं। सेकंड हाँ, यूं भी कह सकते हैं या से पहले जेर आ जाए तो उसको साकिन कर देते हैं। या से पहले हमेशा जेर ही होती है, ऑलवेज ही, ठीक है ना, तो उसको साकिन करते हैं, फिर जी। उसके ऊपर दम्मा नहीं लगाते, तो ये रूल है। अच्छा, तो है ये समानी यूं ही है, लेकिन लगा नहीं सकते, साकिन कर देते हैं। तो साकिन का मतलब है यहाँ बोलेंगे सुकून। समानी यू के? नहीं, बोल समानी बोलेंगे, अच्छा, ठीक। ठीक है, समानी बोलेंगे, जो लिखा हो वही बोलेंगे, इनके ऊपर पेश लगी है तो इनको बोलेंगे। समानी का मतलब 8 है। तिस ऊ जो है ये आपका 9 है। ये थोड़े से मिलते जुलते हैं, सित्तू और तिसु, तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस करना है। और 6 को सित्तू कहते हैं और 7 को सब। तो इसका जो मैंने तरीका बताया ना, आसमान 7 होते हैं, सब असमावातिन आता है, वो भी देखें आप, सब असमावातिन गिनती है, और फिर मादूद जो है वो आपका समावातिन मुअन्नस आ रहा है, और यहाँ सब आ रहा है। अब सब वो क्यों नहीं आ रहा, सब असमावातिन क्यों आता है, इसलिए कि वो मफूल बन रहा होता है जुमले में, ठीक है ना। खलका सब असमावातिन, खलकल्लाहु पैदा किया अल्लाह ने 7 आसमानों को। तो फिर यहाँ पे इसको मफूल बनाने के लिए जबर लगाते हैं। ये बातें अभी आपके सर से गुजर गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगी बाय द टाइम। मफूल क्या होता है, मैं बार बार दोहराऊंगी ना तो फिर आ जाएगा, सही है। जी 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 अच्छा, इकरा वक्तब थोड़ा सा पढ़ लें, इकरा वक्तब कुछ जुमले जी। पढ़ लें। इकरा वक्तब, रीड एंड राइट। फी बैतिना सलासु गुरफिन, हमारे घर में 3 कमरे हैं। 3 कमरे हैं, तो ये तो आपका अदद और मादूद हो गया, और मुरक्कबे अददी बन गया, ठीक है। और ये फी बैतिना कौन सा मुरक्कब बनता है? ये बैतिना मुरक्कब इजाफी और फी बैतिना मुरक्कब जारी, पूरा ये मिल के ना मुरक्कबे जारी बन गया। अब मुरक्कबे जारी अगर शुरू में आ जाए जुमले के, तो वो क्या बनता है? खबर। खबर बन जाता है। इसने खबर ही बनना है, शुरू में आए आखिर में आए, इसने खबर बनना है। तो ये आपकी खबर बन गई, फी बैतिना मुरक्कबे जारी बन के। वैसे तो आप देखेंगे मुरक्कबे इजाफी है ना, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर मुरक्कबे जारी बन गया। अब मुरक्कबे जारी जो है वो आपकी खबर बन गई मुकद्दम, और सलासु गुरफिन क्या बन गया? गुरफिन जमा है, गुरफतुन की जमा है। लफ्जों को ना पकड़ा करें कि अच्छा ये गुरफिन क्या है, ये तो जमा है बताया था, फिर ये मजरूर होता है तो जाहिर है इसका वाहिद भी होगा, तो वाहिद क्या है? गुरफतिन। गुरफतुन कर लें, गुरफतुन वाहिद है, ठीक है ना। तो गुरफतुन का प्लूरल क्या है? गुरफातिन। हाफिलतुन की जमा क्या है? हाफिलातिन। यहाँ पे सब जमा आ रही है, यहाँ पे सब आपके क्या आ रहे हैं? नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, अब ये बन गया मुब्तदा, और ये कौन सा जुमला बन गया मुब्तदा और खबर मिलके? जुमला, सॉरी, कौन सा जुमला? जुमला इस्मिया बन गया, क्योंकि इसमें फेल तो कोई आ ही नहीं रहा ना, कोई फेल नहीं आया। और ये जुमला जो है, ये जुमला चाहे अगर जार मजरूर खबर शुरू में आ रही है, तो खबर वाला जुमला जो होता है वो जुमला ही कहलाता है, जुमला इस्मिया कहलाता है, जिसमें खबर और मुब्तदा आ जाए। नंबर 2 पढ़िए। फिल जामियाती अशरू हाफिलातिन, हमारी फिल जामियाती यूनिवर्सिटी में 10 बसें हैं। 10 मेरी बसें? यूनिवर्सिटी में नहीं जामियाती, नहीं, यूनिवर्सिटी में 10 बसें, यूनिवर्सिटी में 10 बसें हैं। 10 बसें हैं। तो आपकी ये क्या बन जाएगा? जामियाती, ये क्या बनेगा फिल फिर? जामियाती ये बनेगी खबर, और अशरू हाफिलातिन मुब्तदा और जुमला इस्मिया। दोनों मिलके जुमला इस्मिया बन गया, ठीक है ना। आगे जी। फी हाज़िहिल मदरसाती समानी मुदर्रिसातिन, इस स्कूल में 8 उस्तानियां हैं, टीचर्स हैं। फी हाज़िहिल मदरसाती खबर है, खबर हाज़िहिल मदरसा, ये आपका कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब इशारी। अब इसको फी से, जो भी अंदर होगा उसको फी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मुरक्कब जारी बन जाएगा। चाहे अंदर मुरक्कब तौसीफी आ रहा हो, मुरक्कब इजाफी आ रहा हो, मुरक्कब इशारी आ रहा हो, उसने फी से मल्टीप्लाई होके क्या बनना है? मुरक्कब जारी। अब जब ये मुरक्कब जारी बन गया, तो मुरक्कब जारी के मुकद्दर में क्या है? खबर बनेगा, खबर बनेगा।
اور یہ کیا بنے گا؟ سمانی مدرساتن، سمانی یہ مبتدا بنے گا، یہ مبتدا بنے گا. رسمیہ جملہ. جملہ مبتدا پلس خبر کیا ہو گیا؟ صاف صاف یہ رسمیہ جملہ. میتھمیٹکس ہے. جس کا میتھمیٹکس اچھا ہے، میتھ اچھا ہے، جس کا پڑھائی میں، وہ گرامر بہت جلدی سیکھ جاتا ہے. اور فارمولے ہیں سیدھے سیدھے، ٹھیک ہے. جیسے اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا ہے نا، اور پھر خبر اور پلس مبتدا دونوں مل کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ بن گئے. اچھا آگے پڑھیے نمبر 4. عباس لہو سب بناتن، عباس کی 7 بیٹیاں ہیں. ہاں 7 بیٹیاں ہیں. تو عباس، ہاں تو مبتدا کیا بن گیا؟ خبر کیا بن گیا؟ عباس مبتدا اور لہو مرکب اضافی ہے اس کے لیے. ہاں اب اس ایک میں مرکب اضافی ہے، اور پھر سب بناتن دوسرا یہ مرکب عددی ہے. تو یہ دونوں خبر جو کیا؟ ہوں گے وہ خبر میں جائیں گے. دونوں خبر میں نہیں جائیں گے، خبر میں ایک ہی جائے گا. کون سا خبر میں جائے گا؟ لہو جائے گا یا سب او بناتن جائے گا؟ خبر میں کون سا جائے گا؟ دیکھیں خبر وہ ہوتی ہے جس کو جملے سے نکال دیں تو جملہ کمپلیٹ نہ ہو. میری بات غور سے سنا کریں، جب میں بول رہی ہوتی ہے نا میری بات کو غور سے سنا کریں. خبر وہ ہوتی ہے جس کو جملے میں سے نکال دیں تو جملہ کمپلیٹ نہ رہے، کوئی میننگ نہ دے. تو اگر میں لہو کو نکال دیتی ہوں، یہ چلے میں پہلے اس کو نکالتی ہوں، سب بناتن، تو کیا یہ جملہ کمپلیٹ ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، کیا یہ جملہ کمپلیٹ ہے؟ عباس اس کے لیے، عباس اس کے لیے جملہ کمپلیٹ ہے؟ یہ مبتدا خبر بن گیا؟ نہیں، کیونکہ کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہا، جملہ نہیں بن رہا. جملے کا مطلب ہوتا ہے سینٹینس، میننگ فل سینٹینس. اچھا اب میں اس کو رہنے دیتی ہوں اور میں لہو کو نکال دیتی ہوں. خبر وہ ہوتی ہے جس کے نکال دینے سے آپ کا جملہ انکمپلیٹ ہو جائے. میں اس کو نکال دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اب بتائیں یہ اس کا میننگ کیا ہوگا؟ عباس کی 7 بیٹیاں ہیں. کہاں سے ہو گیا؟ عباس 7 بیٹیاں، ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر بھی کمپلیٹ نہیں تھا اور اس کے ساتھ بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے یہ بھی چاہیے جملے میں، یہ ضروری ہے، یہ والا بھی ضروری ہے بیچ میں. تو خبر کس کو بنائیں گے؟ پھر خبر بنائیں گے اس کو. جب آپ کی اصل خبر موجود ہوتی ہے نا تو پھر مرکب جاری کو خبر نہیں بناتے. تو یہ آپ کی اصلی خبر ہے، یہ موجود ہے، اور اس کو آپ کیا بنائیں گے؟ پھر متعلق خبر بنائیں گے، خبر کے متعلق کر دیں گے اس کو، لہو کو. دیکھیں اگر یہ والا نہ ہو تو پھر مجبوراً ہمیں اس کو خبر بنانا پڑتا ہے نا مرکب جاری کو، لیکن اگر یہ موجود ہو تو پھر ہم اس کو متعلق خبر بناتے ہیں. تو اب اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ مبتدا، ایسے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس کو ہم اچھا اس کو ہم متعلق خبر تو نہیں بنا سکتے نا، کہ میں اس کو خبر بنا دوں اور اس کو متعلق خبر بنا دوں. خبر مجھے ایک کو ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے، خبر مجھے ایک کو ہی بنانا ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے؟ بتایا تھا نا کہ ہیں یا ہے کے قریب جو ورڈز ہوتے ہیں وہ خبر بنتے ہیں، اس حساب سے اس حساب سے آپ دیکھیں کیا بنتا ہے، کیا بنتا ہے، ترجمہ کریں. عباس کی 7 بیٹیاں ہیں، تو 7 بیٹیاں. عباس کے لیے یا عباس کی 7 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں. تو 7 بیٹیاں خبر بنانا ہے کہ قریب آ رہا ہے نا. جی. اچھا تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، جو اس کے قریب آئے گا اس کو خبر بنانا ہے، اور جو باقی بچے گا اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو متعلق خبر بنا دینا. اصل میں یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، مجھے بتا دینی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے، میں بتاتی ہوں اگر آپ سمجھ جائیں تو. یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے، اور یہ دونوں جو مل کے ہیں نا یہ خبر بن رہے ہیں، یہ دونوں مل کے خبر بنے. لہو سب بناتے یہ خبر بن رہے ہیں. اچھا اس کے اندر ابھی کیا ہے؟ سب بناتن یہ مبتدا بن رہا ہے اور لہو اس کی خبر بن رہی ہے.
लहू उसकी मुरक्कब जारी शुरू में आ जाए तो खबर मुकद्दम बनता है ना, तो ये खबर बन रहा है और ये वाला मुब्तदा बन रहा है। इस तरह ये एक जुमला इस्मिया बन गया है, ये कंप्लीट जुम्मा। उसके लिए 7 बेटियां हैं, कंप्लीट हो गया ना जुमला, उसके लिए 7 बेटियां हैं, जुमला तो कंप्लीट है, जुमला इस्मिया बन गया ना, ये खबर बन गई, ये मुब्तदा बन गया, सब बनाते हैं। तो ये पूरा एक जुमला इस्मिया बन के अब्बास की खबर बन रहा है। तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि इस पूरे को मिला के आप खबर बना दें, सिंपली उसको मुब्तदा बनाएं, लहू सब बनाते, इनको पूरे का पूरा आप खबर बना दें। तायरा, आपको बात समझ आई है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर एक को भी समझ आ जाती है ना तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। ये मुब्तदा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये मुब्तदा है ना, इसको मुब्तदा बनना है। जी। इसके अंदर एक और जुमला इस्मिया बन रहा है जिसमें ये खबर है मुकद्दम और सब बनाते ये मुब्तदा है। तो ये मुब्तदा और ये खबर मिलके पूरा जुमला इस्मिया बन जाता है। उसके लिए 7 बेटियां हैं, अब्बास को मैंने निकाल दिया तब भी ये पूरा जुमला कंप्लीट बन रहा है, उसके लिए 7 बेटियां हैं। अब ये पूरा जुमला जो मैंने बनाया है जुमला इस्मिया, ये अब्बास की खबर बन रहा है। अब्बास की खबर क्या है? मुब्तदा अब्बास था ना, तो उसकी खबर क्या है? ये पूरा जुमला बन रहा है। तो इसको इन शॉर्ट यही कह लें, अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पूरी खबर है और वो मुब्तदा है। अब तो समझ आ रहा है ना कि अब्बास को मुब्तदा बना लें और उसके बाद लहू जो है ये सब असमावातिन, ये उसकी खबर बन रहा है पूरा के पूरा। सही, चलें अब उसके बाद, क्योंकि दोनों जरूरी हैं, एक को लेके हम खबर नहीं बना सकते, दोनों जरूरी हैं। लहू भी जरूरी था, मैंने लहू को निकाला था तो जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा था, बन रहा था अब्बास 7 बेटियां, तो इसका मतलब है इसको भी लाना जरूरी है बीच में, तो ये पूरी खबर बन रही है आपकी। चलें आगे पढ़ें, एक जुमला और करने फिर मैं किसी और को देती हूँ। फी बैतीना हमारे घर में 9 मुर्गियां हैं। फी बैतीना मुरक्कब इजाफी है और फी की वजह से मुरक्कब जारी बन जाएगा पूरा और खबर बनेगी। मुरक्कब अददी है और ये मुब्तदा बनेगा, तो इसमें जुमला है। ये आपका क्या मुब्तदा बनेगा, ठीक है, और वो खबर बनेगा जी। तो ये इस तरह जुमला इस्तिया बन गया और कंप्लीट जुमला है ये, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इसका वाहिद क्या होगा, ये वर्ड आपके लिए नया आया है ना, इसका वाहिद क्या होगा? दजाजतुन, ये है वाहिद, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा करना है, दजाजतुन। अच्छा, इसका वाहिद क्या होगा बनातिन का? बिनतुन, आपको आना चाहिए ना, बिनतुन से बनातुन बना हुआ है। बिनतुन में जेर आ रही है, बनातुन में जबर आ रही है। जैसे इब्नुन में जेर आती है और अबना उन में क्या होता है, जबर आती है। कि छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप इनको करेंगे ना तो फिर आप गलतियां नहीं करेंगे। अबना, इब्नुन में जेर है, जैसे बिनतुन में जेर है और बनात में जबर है, इसी तरह इब्नुन में जेर है और अबना उन में जबर है। अच्छा, इसका वाहिद क्या होगा मुदरिसातुन का? फौजिया, मुदरिसतुन, इसका क्या होगा? हाफिलतुन। एक बस, हाँ, ये अलिफ को हटा देंगे और इसको गोल ता में चेंज कर देंगे, बस इतना ही करना है, अलिफ को हटा देना है और इसको गोल ता में चेंज कर देना, तो हाफिलतुन बन जाएगा। सही है। अच्छा, ये जैसे गुरफतुन, इसकी जमा मुकस्सर है, ये वाली जो जमा है ना, ये इसमें वाहिद का लफ्ज आपको नजर नहीं आ रहा। गुरफतुन आपको गुरफिन में नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन इसमें आपको हाफिला भी नजर आ रहा है, इसमें आपको मुदरिसा भी नजर आ रहा है, इसमें आपको बिनतुन में भी, इसमें भी आपको बिनतुन का लफ्ज नजर नहीं आ रहा, बनातुन है, इसमें आपको दजाजा का लफ्ज नजर आ रहा है।
تو جس میں واحد کا لفظ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا کون سی جمع ہوتی ہے؟ سالم ہوتی ہے. سالم کا مطلب ہے واحد کا لفظ سلامت ہے اس میں جمع میں. جمع سالم کون سی ہوتی ہے؟ ہاں تو اس میں آپ کا واحد کا لفظ جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. لیکن جب موجود نہیں ہوتا، جیسے آپ دیکھیں غرفتن یا موجود نہیں ہے، تو یہ جمع مکسر ہے. مکسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واحد کا لفظ اس میں ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا. جیسے کتاب کا کیا ہوتا ہے جمع؟ کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتبن. کتبن. اب کتبن کے لفظ میں دیکھیں آپ ٹوٹ گیا نا، واحد کا لفظ کتاب نظر نہیں آ رہا نا، تو یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جمع کتابات ان تو نہیں ہوتی نا، کتبن نہیں ہوتی ہے. تو جو ہوتی ہے ہم وہی یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ تھے ہم 36 نمبر سے آ کے کوئی اور کر لیں. کوثر آپ آئیے. جی میم. آ جائیے. نمبر 6 سے آپ کیجیے. اب فی الجامعتی خمسن کلیاتن. یونیورسٹی میں 5 فیکلٹی ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور خمسن نہیں ہے، خمسو ہے، کیونکہ یہ مضاف ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی، اور یہ مضاف جی الیہ ہے. اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ کلیاتن. کلیون. کلیتن. کلیتن. کلیتن گولتا آئے گی. جب جی. گولتا آتی ہے نا تبھی الف تا لگاتے ہیں آگے. کلیاتن. جی. کلیاتن. تو کلیتن کلیاتن. تو کلیاتن کہتے ہیں فیکلٹی کو بھی کہتے ہیں، اور ایک اور ورڈ کالج کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا سیکشنز بھی کہہ، ڈپارٹمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ڈپارٹمنٹ بھی صحیح ہے. اچھا جی، تو اس میں ابھی بتائیے ذرا کیا بنے گا؟ پھر جامعاتی کیا بنے گا جملے میں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. ہاں، جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جملہ ہوتا کیا ہے ویسے بائی دا وے؟ جملہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، مرکب تام، جس مرکب سے بات تام. مکمل سمجھ آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں. ہاں، جس سے اس کو جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں. مفیدہ یعنی اس بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ مفید جملہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا جملہ جی. مرکب ناقص ہوتا ہے، اور ایک مرکب تام ہوتا ہے. تام کا مطلب ہوتا ہے تمام، یعنی کمپلیٹ جملہ. ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ جملہ ہے. اور کمپلیٹ جملے کے کون سے 2 پارٹ ہوتے ہیں مرکب تام کے؟ اچھا جملہ پہلے اسمیہ اور جملہ ہاں اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں مرکب تام کی. جملہ اسمیہ، خبر. نہیں ایک منٹ. مرکب تام جو ہوتا ہے نا کمپلیٹ جملہ، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. اب جملہ فعلیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو فعل سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. اور جملہ اسمیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو نون سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 قسمیں. اب یہ اس کے 2 پارٹ کون سے ہوں گے وہ بتائیں مجھے. جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ جو ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. مبتدا ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، شروع ہوتا ہے وہ، اور خبر ہوتی ہے اس کے بعد. کبھی کبھی خبر پہلے بھی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے، ایسی نہیں آ جاتی، ایمفیسائز کے لیے آتی ہے خبر شروع میں، مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے. اور جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر اس کا فاعل ہوتا ہے. ہاں فاعل ہوتا ہے، پھر اس کا مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے مفعول، یہ اس کی ترتیب ہوتی ہے، مفعول بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے، نارملی یہی ہوتا ہے سب کچھ. تو مرکب تام اور مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپوزٹ مرکب تام کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مرکب ناقص. مکمل بات سمجھنا ہے. ہاں، جو فریز ہوتا ہے انکمپلیٹ، ناقص جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں، یعنی اس کے 5 قسمیں ہوتی ہیں. اس کی کون کون سے؟ 5 پڑھی ہم نے، 4 پڑھی ہیں. اضافی ہوتا ہے، جاری سے شروع کر لینا. ہاں سب سے پہلے ہم نے جاری پڑھا تھا، پھر ہم نے اضافی پڑھا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اشاری پڑھا. ہاں بس یہ 4 ہی پڑھے، اضافی اور اشاری اور توصیفی. ٹھیک ہے، تو یہ 4 یہ ناقص ہوتی ہیں، یہ فریز ہوتے ہیں، یہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ کے پارٹ ہوتے ہیں، یا مبتدا بن رہے ہوتے ہیں یا خبر بن رہے ہوتے ہیں. یہ پارٹ ہوتے ہیں، جملہ کمپلیٹ جملے کے پارٹ ہوتے ہیں، چھوٹے پارٹ. اور یہ جو ہوتے ہیں مرکب تام، یہ مبتدا خبر سے ملتے ہیں. ہم ابھی وہی پڑھ رہے ہیں،
जो अभी हम ज्यादा कर रहे हैं ना, तो अभी यहाँ आपने किया है ना ये वाला, अब इसमें देखें, इसमें ये फिल जामियाती क्या बन रहा है, खबरे मुकद्दम, खबर मुकद्दम बन रहा है, और मुरक्कबे जारी होकर खबर, हाँ मुरक्कबे जारी, बैतीना मुरक्कबे इजाफी है, उसको फी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, मुरक्कब जारी बन जाएगा। अंदर कुछ भी होगा आपका इससे मल्टीप्लाई होके मुरक्कब जारी बन के खबर मुकद्दम, ठीक है। और खबर मुकद्दम क्यों कहते हैं कि खबर पहले आ गई है, खबर की अपनी जगह बाद में होती है लेकिन वो पहले आ गई है। अब तिस उ दज्जाजातिन ये क्या बनेगा, ये मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा जुमले का, हमारे घर में क्या है, ये तो आपने कर लिया था, 9 मुर्गियां, ये तो पिछली सिस्टर ने कर लिया था, आपने ये वाला किया फिर जामियाती खमसु कुल्लियातिन जी। अब बताइए इसका मीनिंग भी हो गया था आई थिंक, ये मुब्तदा है और ये खबर बन रही, सॉरी ये मुब्तदा बन रहा है और वो खबर बन रहा है, ये खबर मुकद्दम बन रहा है। चलिए अगला जुमला कर लें। फिल मुस्तशफा अशरु तबीबातिन व अरबऊ मुमर्रदातिन, हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर है और 4 नर्स है, 4 नर्सें हैं, और डॉक्टर्स भी कौन सी हैं, फीमेल डॉक्टर्स, ठीक है, फीमेल डॉक्टर। हाँ यहाँ पे ये मुजक्कर आया है अशरु, और इसको आप देखें 10 को कैसे लिखा हुआ है, सुकून के साथ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसका मुअन्नस लिखते हैं तो उस पे सुकून नहीं आता, अशरतु नहीं कहेंगे, अशरतु कहेंगे। टीचर ये चीजें नहीं बताते इतनी बारीकी से, स्टूडेंट बेचारे फिर वो अशरतु अशरतु ही करते रहते हैं सारी जिंदगी। तो जब आप मुजक्कर लिखेंगी तो सुकून के साथ लिखेंगी, और जब आप मुअन्नस लिखेंगी तीनों पे जबर लिखेंगी, ठीक है। तो ये बात है, आगे पढ़िए। इसमें आप देखें फिल मुस्तशफा तो क्या बन जाएगा, आपकी खबर मुकद्दम और ये आपका मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है। और यहाँ पर ये भी क्या है, अरबाअतु, ये आपका क्या बन रहा है, क्या बनाऊं मैं इसको, खबर नहीं बनेगी, ये भी खबर ही बनेगी, इसकी खबर बनेगी फिल मुस्तशफा की ना, जी दोनों खबर ही बनेगी। ये यहाँ पर तो ये मुब्तदा बना है ना, यहाँ पे तो ये मुब्तदा बना है, फिल मुस्तशफा मुरक्कब जारी है ना, तो वो आपका क्या बना है, खबर वो आपकी तो खबर, ये भी मुब्तदा नहीं बनेगा, अरबाऊ, ये भी मुब्तदा बनेगा, और इसकी खबर यहाँ से उमिट कर दी है वाव के बाद। फिल मुस्तशफा यहाँ भी था लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि वो एक दफा फिल मुस्तशफा आ गया ना, तो ये जो ये मुब्तदा ही बन रहा है, और इसकी खबर, इस मुब्तदा की फिर खबर किधर है, होनी तो चाहिए ना इस मुब्तदा की खबर भी, तो वो यहाँ से उमिट कर दी गई है, हज़फ की हुई है यहाँ से। व फिल मुस्तशफा अरबाअतु मुमर्रिदातिन, तो मैंने बताया जब हम उर्दू में एक बात करते हैं ना कि फिल मुस्तशफा हॉस्पिटल में क्या कहते हैं, 10 जो हैं यहाँ पे डॉक्टर्स और 4 नर्सें हैं, दोबारा तो नहीं कहते ना कि हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में 4 नर्सें हैं, ये तो नहीं कहते ना, इसलिए उर्दू में भी उमिट कर देते हैं, गैर जरूरी है, और इसमें भी कर देते हैं। लेकिन ये मुब्तदा बन रहा है अगर, तो इसकी खबर क्या है, फिल मुस्तशफा ही है जो यहाँ से उमिट की हुई है। आगे चलिए। खालिदुन लहू सलासतु अबनाइन व अरबऊ बनातिन, खालिद के 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां, तो खालिद क्या हो गया, हाँ मुब्तदा हो जाएगा, और ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरी खबर बन जाएगी। लहू को निकाल नहीं सकते, असल में लहू यहाँ पे खबर मुकद्दम बन रही है, इस वाले जुमला इस्मिया की, इस जुमला इस्मिया की खबर मुकद्दम बन रही है, और ये पूरा मुब्तदा बन रहा है आपका, और ये दोनों मिलके जुमला इस्मिया बन के इस खालिद की खबर बन रहे। तो यहाँ लहू को मुतालिक की खबर नहीं बोलेंगे मैम, मुतालिक की खबर नहीं बोलेंगे, मुतालिक की खबर, ये जो अंदर जुमला है ना, ये जो अंदर जुमला है ना, इसकी ये खबर बन रहा है, शुरू में आ गया ना,
तो ये उसकी खबर बन रहा है, ये पूरा मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा प्लस खबर दोनों मिलके जुमला इस्मिया बन रहे हैं, ठीक है। और जुमला इस्मिया बन के खालिद की खबर बन रहे हैं। खालिद मुब्तदा है ना, उसकी खबर कहाँ है, उसकी खबर, इसलिए मैं इसको पूरे को खबर बनवा रही हूँ ना, कि अभी आप इस स्टेज पे नहीं है कि आप इतनी बात को समझ सकें, हर एक नहीं समझ पा रहा मेरी बात, ठीक है। तो वो क्या करे, इसको मुब्तदा बनाए और पूरे सारे को खबर बना दे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और भी आज, एक तो मुरक्कबे अददी सीखा है, बाकी 4 हमें आते हैं, एक और भी आज हमने वो सीख लिया कि मुरक्कब बन रहा है यहाँ पे, अशरु तबीबातिन व अर्बाअतु मुमर्रिदातिन। ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, कौन बताएगा? ये भी मुरक्कब बन रहा है एक। जी, मुरक्कब अत्फी। अत्फी, हाँ, वो आ गया ना बीच में, तो ये अत्फी बन रहा है। जी, तो ये मुरक्कब अत्फी बना के इस पूरे को आप मुब्तदा बना दें, ठीक है। और इसको आप क्या करें, फिर मुस्तशफ़ा को खबर मुकद्दम बना दें, ठीक है। समझ आ रही है बात? ये पूरा मुरक्कब अददी बन के आपका मुब्तदा बन गया। और इसमें भी इसी तरह से है, इसमें भी आपका खालिदुन मुब्तदा है, और ये वाला जो अंदर वाला है, ये एक और जुमला है इसके अंदर, उसमें ये खबर बन रही है, और ये पूरा मुरक्कब अददी बन के मुब्तदा बन रहा है। ये खबर और ये मुब्तदा, इन दोनों को जब प्लस करेंगे मुब्तदा और खबर को, तो ये क्या बन जाएगा, ये खबर है, ये मुब्तदा है, दोनों को जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जुमला खबर, इस्मिया। जुमला इस्मिया। अब ये जुमला इस्मिया पूरे का पूरा इस खालिद की खबर बन रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट यही कह रही हूँ कि इस पूरे को खबर बना दें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि ये कल खबर जो होती है वो 1 वर्ड भी आ सकती है, खबर मुरक्कबे जारी भी आ सकती है, खबर मुरक्कबे इजाफी भी आ सकती है, खबर जो होती है वो मुरक्कबे तौसीफी भी आ सकती है, खबर जुमला इस्मिया भी आ सकती है, खबर जुमला फेलिया भी आ सकती है, पूरा जुमला फेलिया भी खबर बन के आ सकता है, ठीक है। तो खबर जो होती है वो बहुत तरह की होती है। तो खबर सिर्फ मुरक्कब जारी नहीं बनती, खबर 1 वर्ड भी होती है, जैसे हाजा किताबुन, तो हाजा मुब्तदा है, किताबुन खबर है, 1 वर्ड खबर है, मुफरद खबर है। यहाँ पे लहू में ये खबर बन रही है, मुरक्कब जारी बन रही है, ये पूरा मुब्तदा बन रहा है। सही, चलें आगे चलते हैं इंशाल्लाह। नंबर 9 करें सिस्टर। ली खमसतु इख्वतिन व सित्तु अखवातिन। जो सबको ये पढ़ना मुश्किल लगता है। अच्छा, चलें पढ़ें, इसका बताएं मुझे अभी क्या मुब्तदा खबर। मेरे 5 भाई हैं और सित्तुन 6 बहनें हैं। 6 बहनें हैं, तो ये भी मुरक्कबे अत्फी बन गया ना जी। खमसतु इख्वतिन, ये आपका वसित्तु अखवातिन, ये भी मुरक्कबे अत्फी बन गया। इधर भी मुरक्कबे अत्फी में क्या होता है, बीच में वो होता है और जो चीज पहले होती है वही आगे होती है। अगर यहाँ मुरक्कबे इजाफी है तो वहां भी मुरक्कबे इजाफी, ठीक है। तो ये आपका मुरक्कबे अत्फी बन के आपका इस ली का मुब्तदा बन गया, और इस तरह ये पूरा जुमला इसमें बन गया। ली खबर मुकद्दम है, मुरक्कब जारी, ये खबर मुकद्दम है, और ये आपका मुब्तदा मुअख्खर है, पूरा मुरक्कबे अत्फी बन के। चलें आगे। आप जितनी बात थोड़ी बहुत भी समझ रहे हैं ना, मुब्तदा खबर को भी समझ रहे हैं, ये भी यहाँ इस लेवल पे बहुत बड़ी बात है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो बहुत जल्दी आप ग्रामर सीख जाएंगे। चलिए नंबर 10 नंबर 10 कीजिए। फी हाजल किताबी अशरतु दुरूसिन। अभी इसके पार्ट बनाएं, जुमला तो इसमें ही है ये भी, क्योंकि इसमें कोई फेल नहीं आ रहा। हाजल किताबी मुरक्कब इशारी है, फी लगाने से मुरक्कब जारी हो गया, ये मुब्तदा मुअख्खर होगा। अशरतु दुरूसिन मुरक्कब इजाफी हो गया, मुब्तदा मुअख्खर होगा। ठीक है, वो पहली वाली खबर मुकद्दम है ना, हासिल के तक ये खबर मुकद्दम है, ये खबर मुकद्दम है पूरा, और ये आपका मुब्तदा मुअख्खर है।
इसको आप खबर ही बनाएंगे, ठीक है, इसको और कुछ नहीं बना सकते, तो ये मुब्तदा ही बनेगा। अब देखें यहाँ अशरतु आया है और यहाँ अशरू आया था मुज़क्कर। दुरूसिन का वाहिद क्या होता है? दरसुन। और अखवातुन का वाहिद क्या होता है? अखवतुन, इखवतुन ना, उख्तुन सिस्टर, सॉरी उख्तुन, अखुन होगा। अखवात का उख्तुन होगा, ये मुअन्नस है ना, इसका तो अखुन, इसके आगे तो खमसतु है। अखुन। ये वाला इखवतुन जो है ना, इसका आपका अखुन होगा ना, जी ये इसी की बात कर रही है, अखुन होगा ना इसका। हाँ, इसका अखुन होगा, इसका उख्तुन होगा। वो ये ना, आप इसको जब आप वाहिद बनाते हैं तो आप जबर लगाने की कोशिश करते हैं, अख्तुन, तो जब आप अख्तुन लगाते हैं तो वो आपके मुंह से निकलता नहीं है, उख्तुन होता है। जैसे उम्मुन होता है ना पेश के साथ, इसी तरह उख्तुन होता है। और आ जाएगा इंशाल्लाह, बार बार पढ़ा करें। नंबर 11 भी करें। लना अर्बाअतु आमामिन व खम्सु अम्मातिन। मेरे 4 चच्चा होगा ना मैम इसका, अम्मा अम्माम। मेरे 4 चच्चा है और 5 चच्ची है, चच्चियां हैं या फुफियां, जो भी कह सकते हैं, अच्छा। ठीक है ना। तो इसका वाहिद क्या होगा और इसका वाहिद क्या होगा? लना, लना हमारे लिए, हाँ, हमारे लिए खबर बन जाएगी ना, ये खबर मुकद्दम बन जाएगी और ये पूरा मुरक्कबे अत्फी बन के आपका वाव आ रहा है। आज आपने मुरक्कबे अत्फी की शक्ल भी देख ली। अस्समावाती वल अर्दी क्या है? अस्समावाती वल अर्दी कौन सा मुरक्कब बन रहा है? ये भी अत्फी है। अत्फी है ना, चाहे एक वर्ड पीछे हो या पीछे पूरा मुरक्कब हो बहुत से पहले। अगर इधर एक वर्ड होगा तो इधर भी एक ही वर्ड होगा, ये मजरूर है तो ये भी मजरूर है, इस पे अलिफ लाम आ रहा है तो इस पे भी अलिफ लाम आ रहा है, ठीक है। ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है, तो ये बिल्कुल मुरक्कबे तौसीफी की तरह होता है, लेकिन सिर्फ इसके बीच में वाव आ जाता है, तो ये इसको मुरक्कबे अत्फी कह देते हैं, क्योंकि हर्फ अत्फ होता है ना बीच में। और इस वाव को तो मैं मिरर कहती हूँ, ये जब आएगा तो जो इधर होगा वो इधर होगा, जो बाहर होगा वो मिरर के अंदर भी होगा। तो ये आपका यहाँ पर मुरक्कब इजाफी है, तो वाव के बाद ही मुरक्कब इजाफी आ रहा है। अच्छा, इसमें खबर और ये मुब्तदा हो गया। अच्छा, अम्मुन इसका वाहिद होगा, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, अम्मुन चच्चा और अम्मातुन चच्ची, अम्मुन और इसका क्या होगा, अम्मातुन, चच्ची या फूफी भी कुछ भी कह लें, ठीक है। ये इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो इसमें अलिफ ता का इजाफा करेंगे, इसको गिरा देंगे और आगे अलिफ ता का इजाफा करेंगे, अम्मातुन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़बर है, इसको छेड़ना नहीं, बस इसको गिराना है और ये अम मा इसके साथ मिल जाएगा, ये मीम है ना, इसके साथ जाके मिल के इस तरह बन जाएगा अम्मातुन। तो क्योंकि ये मुदाफिल लै बन रहा है तो अम्मातिन हो गया। चलें, अब 3 जुमले रह गए, कोई और पढ़ ले आके ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए। काफी लोग चलेंगे, नेट की प्रॉब्लम होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है लोगों को। अफसाना आप आ जाए, थोड़ा सा आप पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ये 3 सेंटेंसेस आप करने। फी बलदी खमसु जामियातिन, शहर में 6 यूनिवर्सिटी हैं। 6 है, खमसु क्या होता है? खमसतुन, खमसु, खमसा तो 5 होगा ना, 5 होता है। हाँ, खमसु सलावातिन होता है ना, 5 नमाजें होती है ना जी। सलावातिन। शहर में 5। हाँ, अच्छा, मेरे शहर में बलदी भी है ना, या भी लगा हुआ है ना, तो या का मतलब कहते हैं इन माई कंट्री, इन माई कंट्री देयर आर 5 यूनिवर्सिटीज। जामियातुन, यानी मेरे देश में, जी मेरे देश में 5 यूनिवर्सिटी हैं। शहर नहीं आएगा बलदी का मतलब उस्ताद? नहीं, इसका मीनिंग कंट्री होता है, मैंने आपको दिखाया भी था कल परसों, कंट्री होता है, बताया था पहली क्लास में। हाँ, तो वो सिटी जो है कहीं कहीं कहीं, हाँ,
हाँ वो जो होता है ना उसके लिए अलग आता है, करिया होता है, सिटी होता है। बलद बिलाद जो होता है कंट्री के लिए यूज होता है, जो ग्लोब के ऊपर बड़े बड़े बने होते हैं ना कंट्रीज के अलग अलग, वो बिलाद होते हैं। और ये बलद क्या है, ये एक कंट्री है, माई कंट्री। जामियातुन का प्लूरल है जामियातुन, और ये तिन क्यों हो गया, मुदाफिल होने की वजह से। खमसु 5, ये मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर आ रहा है। बलदी अगर सिर्फ होता ना बलदी, ये या ना होता और जेर होता तो फिर आप बोलती कंट्री। मुल्क में 5 यूनिवर्सिटियां हैं, अब ये मेरे मुल्क में 5 यूनिवर्सिटियां आपको। चलें आगे क्या है, फी हाज़ा दरसी समानी कलिमातिन जदीदतिन। अब बताइए ये है दरसी समानी। इसमें क्या बनेगा, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा तो हाज़ा आएगा सब यहाँ। अदरसी समानी कलिमातिन ये जदीदतिन। कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ये वाला। मुरक्कब इशारी। हाँ तो इसको फी से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा तो ये मुरक्कब जारी बन जाएगा ना। फी हर्फ जर है, उससे मल्टीप्लाई होके मुरक्कब जारी बन जाएगा। ठीक है, तो मुरक्कब जारी क्या बनता है जुमले में, मुरक्कब जारी तो खबर बनता है। खबर बनता है, तो यहाँ पे ये खबर बन जाएगा ये पूरा। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा तीनों वर्ड जो है ये खबर बन जाएंगे, और ये आगे वाला क्या बन जाएगा, पूरा ये मुब्तदा बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका कलिमातिन जदीदतिन, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, कलिमातिन जदीदतिन, न्यू वर्ड, मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। ठीक है ना, इधर भी 2 ज़ेर है, इधर भी 2 ज़ेर है, ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है। ठीक है, तो कलिमातिन जदीदतिन जो है ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, और समानी जो है ये अदद है। ठीक है, और कलिमातिन महदूद है, और जदीदतिन उसकी सिफ्त है। ठीक है ना, तो ये महदूद मुझे समझ नहीं आया, ये महदूद किसको बोलते हैं? जो अदद के बाद आता है ना, जैसे ये अदद है ना, ये नंबर है ना 5, ये नंबर है ना 5, क्या होता है, इट्स अ नंबर, अदद है, तो उसके बाद जो आता है वो महदूद होता है। जो अदद रेफर करेगा, मतलब अदद जिसको रेफर करेगा कि किस चीज के बारे में हम बोल रहे हैं। हाँ, जिस चीज की गिनती की जाती है ना उसको मादूद कहते हैं। अब यूनिवर्सिटी की गिनती की गई है ना, यूनिवर्सिटी कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, तो वो यूनिवर्सिटी मादूद है, उनको गिना जा रहा है 1 2 3 4 5, तो ये मादूद है और ये अदद है। ठीक है, जो पहले आएगा वो अदद है, जो बाद में आएगा मादूद। अब यहाँ पे समानी पहले आ गए, ये अदद है, और कलिमातिन क्या है, ये मादूद है। ठीक है, सलासु क्या है, ये अदद है, और मुजल्लातिन ये आपका मादूद है। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, मुरक्कब अददी बन गया, अददी। सही है ना, भी याद आए तो कोई बात नहीं, सही बात है, ये अदद है, ये मादूद है, तो समझ आ जाना चाहिए बस। तो इंदी, ये आपका हिंदी क्या बन जाएगा यहाँ पे, मेरे पास हिंदी मेरे पास सलासु मजल्लातिन, मजल्लातुन, ये मजल्लात है ना, ये तस्वीर बनी है। हाँ, तो मेरे पास कितने हैं, 3 मैगजीन है। मैगजीन, मजल्ला क्या होता है, मजल्लातुन, मैगजीन, मजल्लातुन, ये इसका प्लूरल है। ठीक है, इसको हटा के अलिफ ता लगा देंगे तो मजल्लातुन बन जाएगा। सही है, तो ये आपका अदद है, ये महदूद है। रिकॉर्डिंग को सुना करें, एक बार तो फर्ज है आपके ऊपर उसको सुनना दोबारा से। वैसे आप जितनी बार सुनेंगे इतना आपको फायदा होगा, क्योंकि नई नई चीजें बार दफा स्किप कर जाते हैं, हमारे कान सुन नहीं पाते, हमारा ध्यान कहीं बट जाता है, और वो चीजें फिर हमें बार बार सुनने से हमारे सामने आती है। तो कम से कम एक बार तो जरूर सुने अपनी रिकॉर्डिंग, अगर आपने पढ़ना है तो।
ठीक है, हाँ, उस क्योंकि समय आप वैसे लोग आप क्लास में भी लेट आते हैं। जी सादा आज की क्लास के आपने जो लिंक शेयर करा था तभी शुरू हो गई थी क्या? क्योंकि 3:30 का टाइम लिखा हुआ था, तो मैंने थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया मेरा क्लास ज्वाइन करने। नहीं, आपका तो 3:30 बजे इंडिया का टाइम होता है ना, उसी टाइम पे आया करें, ठीक है। जी, मतलब आपने क्लास शुरू कर दी थी क्या? नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मैं एग्जैक्ट जो है सही टाइम पे शुरू करती हूँ। 2 मिनट ऊपर ही मतलब होते हैं, कम नहीं हो सकते। अगर मेरा टाइम 6 अगर होता है तो मैं उससे पहले कभी क्लास नहीं शुरू करती, हमेशा उसके बाद ही शुरू करती। 2 मिनट 3 मिनट ऊपर ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देर करते हैं ना। आज मैंने आपकी रिकॉर्डिंग जी, जो क्लास मेरी मिस हो गई थी, मैंने आज रिकॉर्डिंग सुनी थी इसकी, जो आपने बुक नंबर 1 स्टार्ट करी ना, सेकंड लेसन का मेरा मिस हो गई थी, तो मैंने सुनी थी। अच्छा, आप ऐसे क्या करें, रिकॉर्डिंग सेम डे ना सुना करें जिस दिन क्लास होती है, उससे कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले सुना करें। बेहतर यही होता है कि जिस दिन मैंने क्लास ली है उसके बाद 24 आवर्स में आप सुन लें। जैसे आज मैंने क्लास ली है तो 24 आवर्स में इसकी रिकॉर्डिंग सुन लें। आप क्लास में भी आए, आपने रिकॉर्डिंग भी सुन ली, तो वो पक्का हो जाता है आपका। लेकिन अगर ना कर सकें 20 तो कम से कम इस आज की क्लास से पहले सुने, क्योंकि आप टायर्ड होके जब आएंगे दिमाग में बहुत सारी चीजें वो भी होंगी, फिर कुछ चीजें नई भी डालेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होती है फिर। तो आप उसको थोड़ा रिलैक्स होके सुने और फ्रेश होके क्लास में आए, बिल्कुल फ्रेश होके आके पढ़े यहाँ पे, सही है। एक्चुअली मेरी क्लास में असाइनमेंट रहते हैं, तो डेली क्लास होती है, तो तब भी जब भी टाइम मिलता है तो मैं तभी कोई बात रिकॉर्डिंग नहीं, भी सुन कोई बात नहीं, जितनी आपकी हिम्मत है अल्लाह ताला उतना ही पूछेंगे, उतना ही करना है हमें, हम उससे ज्यादा, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से करनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को देख के उसका अजर दे देते हैं हमें, कि हमने हमारी इस्तिताअत थी, हमने अपनी कोशिश कर ली। अच्छा, समझ आया आपको कि नहीं आया? ये सारे जुमला इसमें हैं, सबके अंदर खबर मुकद्दम आ रही है, यहाँ भी खबर मुकद्दम है, यहाँ भी। और ये खबर मुकद्दम क्यों आती है? खबर तो मुब्तदा के बाद आती है ना, तो पहले क्यों आती है? खबर पहले क्यों आती है? बाद में भी आ सकती है। इसलिए आती है कि उसमें एम्फेसाइज लाना होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसमें देखें तो आपका अलहम्द जो है उसके बाद वो मुब्तदा है और खबर क्या है? लिल्लाही, जार मजरूर खबर बन रही है। लेकिन जब आप कहते हैं वलिल्लाहिल हम्द, तो उसमें एम्फेसाइज आ जाता है, खबर पहले आने से, लिल्लाही पहले आने से, ठीक है। तो ये बातें समझें कि क्यों खबर पहले लाई जाती है, खबर की जगह तो बाद में होती है। अल्लाह ही के लिए हैं तमाम तारीफें, तमाम शुक्र, तमाम खूबियां, वो अल्लाह के लिए, अल्लाह ही के लिए। लेकिन जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें इतना नहीं होता है एम्फेसाइज, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो ये बात है सारी, तो इन चीजों को समझे, एम्फेसाइज करना होता है। फी हाज़ल किताबी अशरत दुरूसिन, इस किताब में 10 सबक हैं, तो उसमें एम्फेसाइज आ जाता है। इस किताब में जोर किस पर हो रहा है? किताब पे हो रहा है, इस किताब पे जोर हो रहा है, तो उसको पहले लाया गया है। लिल्लाही वलिल्लाहिल हम्द में अल्लाह पे जोर हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह में तमाम तारीफों पे जोर हो रहा है। तो जिस चीज पे जोर हो रहा था उसको पहले ले आते हैं, ये बात है सारी। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, अब ये कौन करेगा कि किसमें हिम्मत है नंबर्स को आके अरबी में कन्वर्ट करना है? अच्छा, आप करें जरा, अफसाना 1-2 करें, अगर आप कर सकती हैं तो कोशिश करें। अजीब अन अस इलती अल अतियती मुस्तमिलन अदादल मज़कूरा बैनल कौसैनी। कौसैन क्या होते हैं? कौसैनी। कौसुन क्या होता है? कौसुन का ये मुसन्ना है ना, कौसुन। कौसुन क्या होता है, कोई बताएगा कौसुन क्या होता है? ब्रैकेट्स। हाँ, ये जो आर्क होती है ना, कौसे कजा भी कहते हैं ना। कौसे कजा किसको कहते हैं आपको पता है? रेनबो जो होती है, बारिश के बाद जो नजर आती है ना, रेनबो, है ना। जी जी।
وہ اس شکل کی ہوتی ہے نا, اس میں کلرز ہوتے ہیں, تو اس کو کوس کہتے ہیں. تو پھر یہ جو آرک لگاتے ہیں ہم, یہ ایک آرک ہوتی ہے, اس کو ہم کوس کہتے ہیں. اور جب دو ہو جاتی ہیں, ادھر بھی ہوتی ہے ادھر بھی, تو کوسین کہتے ہیں. جب بھی نون کے نیچے زیر آئے گا اس کے میننگ دو کے ہوں گے. کتابانی, کتابینی, نون کے نیچے زیر آئے گا اس کے معنی دو کے ہوں گے. بین القوسینی دو بریکٹوں کے درمیان ہے. بینہ کا مطلب مڈل آف, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا مطلب ہے. تو عجب جواب دیجئے انل اسئلۃ الاتیتی, آنے والے سوالوں کے, مستعملان استعمال کرتے ہوئے, العدد المذکورہ, مذکور کا مطلب ہے یہ جو ذکر کیے گئے یہاں پہ عدد, یہ جو عدد ذکر کیے گئے یہ عدد ہے, یہ معدود نہیں ہے, یہ عدد ہے. تو بین القوسین دو بریک. اب آپ کریں اس کو, کم اخن لکا, کم اکھن لکا, میننگ کیا ہے؟ تو آنسر دینا ہے عدد 6, مطلب 6 کا یوز کریں گے نمبر, ہاں میرے کہ آپ 6. کے کتنے بھائی ہیں, ہاں تو آپ کتنے کیا, بھائی ہیں. ہاں تو بتائیے میرے 6 لکی بھائی. لکی لکی اکھن 6 کو, نمبر کو کیا کہیں گے عربی میں سب؟ نمبر کو کیا کہیں گے؟ 6 کو بتایا تو تھا. پہلے تو آپ یہ دیکھیں گی نا کہ آپ معدود کیا آ رہا ہے آپ کا. آپ کا معدود جو ہے وہ اخوتن آئے گا, اخوتن آئے گا, کیونکہ یہ 6 ہے نا, 6 بھائی جمع لگائیں گی نا آپ. اب 6 کے لیے کیا نمبر آتا ہے؟ یہ اخوتن مذکر ہے, تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ستتو, ستتو, تو ستتو اخوتن, صحیح ہے. تو یہاں پر ہو گیا تیرے 6 بھائی ہیں, لیکن یہاں پر آپ نے لکی کیوں کہا تھا؟ تمہارے لیے 6 بھائی ہیں, تمہارے لیے 6 بھائی ہیں, نہیں میرے لیے 6 بھائی ہیں. تو میرے لیے کہ کیا ورڈ آئے گا؟ لکی تو نہیں آئے گا میرے لیے, میرے لیے کیا لی آئے گا. ہاں جب بھی جواب دیتے ہیں تو میرا ہوتا ہے نا, تو تیرا تو نہیں ہوتا. تیرے اب وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے اور آپ اس کو بول رہی ہیں تیرے 6 بھائی ہیں, آپ نے جواب دینا ہے کہ میرے 6 بھائی ہیں. اچھا اگلا کریے, اگلا کریے, اسی طرح کرنا ہے. کم اختن لکا, انی اختتن خمسطن. پہلے آپ نے نمبر لگانا ہے, پھر محدود لگانا ہے, پہلے عدد لگانا ہے. تو کتنی بتا رہے ہیں؟ 5 نا. تو اب یہاں پہ اختن مونس آیا نا, اس کو دیکھتے ہی آپ نمبر لگائیں گے نا, یہ آپ کا مونس ہے, یہ اختن مونس ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نمبر جو ہے مذکر لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ خمسو. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ خمسو مذکر آئے گا, اور اب پھر آگے کیا آئے گا؟ اخواتن, اخواتن, یہ آپ کا بنے گا. میری کتنی بہنیں ہیں؟ 5 بہنیں ہیں. اس نے پوچھا تھا کم اختن لکا, آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لی خمسو اخواتن. یہ عدد ہے, یہ معدود ہے, یہ آپ کی خبر مقدم ہے اور یہ آپ کا مبتدا مؤخر. اچھا اب آگے کوئی اور کر لے, آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, آپ سنیں پھر بعد میں آپ پریکٹس کیجیے گا. میں پڑھنا چاہتی ہوں. یاسمین احمد. ہاں پڑھیے. کم بقرۃ فی الحقل. ہاں بقرتن, یعنی کہ یہ تمجیز ہے, گائے. یہ تمجیز ہے, ٹھیک ہے. کم کے بعد اگر منصوب آ جائے نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی تمجیز ہوتا ہے. فی الحقلی کا مطلب ہوتا ہے کھیت میں کتنی گائے ہیں. تو ابھی آپ نے بتانا ہے کھیت میں 10 گائے ہیں. جی تو یہ ہوگا اشرو بقرات فی الحقلی. اشرت, آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتی ہیں, فی الحقلی پہلے لگا دیں, یا فی لگا کے حقل کی جگہ ہی لگا دیں. فی ہی, کیونکہ یہ مذکر ہے نا کھیت, تو اس میں آپ فی ہی بھی لگا سکتے ہیں. فی ہی, اور آگے اب لگائیے اشر. یہ بقرۃ مؤنث ہے, تو آپ یہاں تو اشرتن نو اشرو, اشرو ہوگا.
अशरू हाँ होगा अपोजिट हाँ जी जी अशरु बकरातुन जी 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 बकरातिन। बकरातिन तिन क्यों किया मैंने? जमा बकरातिन लगाइए ना। ये मुदाफिला बन रहा है ना, ये मुदाफ बन रहा है, तो ये आपकी खबर मुकद्दम हो गई और ये आपका मुब्तदा मुअख्खर हो गया। तो आपने इसमें पहले देख लेना है कि आपका ये जो आ रहा है ना तमजीज, ये मुज़क्कर आ रहा है या मुअन्नस आ रहा है। तो फिर उसके मुताबिक अगर मुअन्नस है तो मुज़क्कर लगाएंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे मुज़क्कर है तो यहाँ मुअन्नस लगाएंगे। चलिए अगला करें, नंबर 4। या कम तालिबतन जदीदतन फिल फसली, क्लास में कितने तालिबे इल्म हैं? तो इसका आंसर होगा नए तालिब इल्म, नई तालिब इल्म, नई तालिबे इल्म जी। तो मैम ऐसे बनाना है फी ही करते हैं, फसल की जगह फी ही लगा देंगे जी। आगे 9 हाँ तिस्ऊ, वेरी गुड। और तालिबात है ना तो तिस्ऊ ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि तालिबात जो है वो मुअन्नस है। तिस्ऊ आगे क्या लगाऊं? तालिबातिन तिन आएगा, ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा हाजिर दिमाग रहना है, शौक रखना है थोड़ा। आगे बताएं ये वाला जी। नेक्स्ट है कम तबीबतन फी मुस्तशफल विलादती, कितने डॉक्टर मैटरनिटी हॉस्पिटल में है, ऐसा? हाँ ऐसे ही है, आगे ओके। अब इसका जो जुमला बनेगा 9 के लिए 30 हाँ एक नंबर 8 है समानिया, तो ओके इसके लिए फी ही लगाएंगे ना, फी हा नहीं लगाएंगे, फी ही लगाएंगे हॉस्पिटल या समानियत समानी आगे क्या आएगा? तबीबातिन बस खत्म बात, ये मुज़क्कर हो गया और ये मुअन्नस हो गया, ये आपका ये अदद है, ये मादूद है, दोनों मिलके तो ये मुब्तदा बन गए और वो खबर बन गया फी ही, ठीक है। चलिए आगे कम हाफिलतन फिल जामियाती, यूनिवर्सिटी में कितनी बसें हैं? तो यहाँ हो जाएगा अब फी हा होगा ना, यहाँ पर जामियत मुअन्नस है तो हाँ फी हा, जामिया मुअन्नस है तो फी हा, वेरी गुड। फी हा तिस्उ हाफिलातिन, वेरी गुड। तिस्उ 9 है, 6 है, ये आपने गलत करवा दिया ना। हाँ सित्तु मैं बता रही थी शुरू से आपको कि इस पे आप कंफ्यूज होंगे, सोच के करना है, क्योंकि दोनों में सेम वर्ड आते हैं, सीन और ता, एक में शुरू में आता है सीन और एक में आखिर में आता है। तो अब आप देखें क्या हो गया, ये 6 है ना, हाँ तो सित्ता तुन होता है ना, तो हम सित्तू लिखेंगे क्योंकि हमने आगे मुअन्नस लिखना है। सित्तू आगे क्या है? हाफिलातिन जी। इस्लाम को अलिफ को क्यों नहीं आप पढ़ते? अगर आप हाफिलातिन कहेंगे, अगर आप हाफिलातिन पढ़ेंगे तो वो वाहिद हो जाएगा, ठीक है, तो ये सलिफ को पढ़ना है जी। अच्छा कम इब्नन लका, सब एक सवाल है, ये फी क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि जामिया मुअन्नस है ना, तो ये जमीर पीछे लौटती है ना, जामिया की तरफ जा रही है, जामिया मुअन्नस से यूनिवर्सिटी, तो ये भी हा है, और यहाँ पे मुस्तशफा हॉस्पिटल था तो मुज़क्कर था तो उसकी तरफ हमने ही लगाया, यहाँ फसल भी मुज़क्कर था तो हमने ही लगाया। अच्छा यहाँ पे हकल भी आपका जो था वो भी मुज़क्कर था तो हमने ही लगाया था। समझ आई ये बात, क्यों हमने दो ज़मीरें, एक मुज़क्कर जी आंसर में हम जामिया के को मतलब बता रहे हैं, जामिया के बारे में, लेकिन हम जो सवाल कर रहे हैं तो सवाल तो किसी से कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ हमने फी इस्तेमाल किया, तो फिर यहाँ मतलब फी से मतलब फी हा कैसे कन्वर्ट कर दिया? जिस लफ्ज के आखिर में गोल ता होती है ना,
वो मुअन्नस होता है, ठीक है, वो फेमिनाइन होता है, उसके लिए हा का प्रोनाउन यूज करते हैं, हु का नहीं यूज करते। हु का यूज करते हैं मैस्कुलाइन के लिए, मैस्कुलाइन के लिए हम हु का यूज करेंगे, इसके लिए मुअन्नस का यूज करेंगे, बोलता वाले। और आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, फिल जामियाती सब सित्तु हाफिलात, इस तरह भी लिख सकती हैं। मैंने जामिया की जगह जमीर लिख दी, फी हा कर दिया, आप फिल जामियाती भी लिख सकती हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, अब आया, मतलब हाँ। अब समझ में आया उसका। हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा, क्वेश्चन जरूर कर लिया करें। अच्छा, आगे कोई और करिए, 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 आप करिए एक सेंटेंस। आपके कितने बच्चे हैं, ये औकाश का मीनिंग? बेटे हैं। बेटे, ओके। हम्म, ली अरबा, बेटा ली अरबातु, यहाँ पे ता आ जाएगा, है ना, ता मरबूता, ली अरबातु, अरबातु मुअन्नस आएगा, ठीक है, वेरी गुड। जी, आगे क्या? अरबातु अब लड़के में हो जाएगा, इसमें जमा करें ना, इब्नुन की जमा क्या होती है? इब्नान, अबनाउन, अबनाउन, अच्छा ये भूल गई थी मैं जमा। अबनाइन होगा क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन रहा है, समझ आइए, ये मुदाफ है और ये जी, मुदाफ इलैह, तो इसके नीचे दो ज़ेर आएंगे। अरबाअतु ये मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस लिखा है, यहाँ पे लका था तो हमने ली लिखा है। मेरे कितने बेटे हैं? बेटे ही है ना, मेरे 4 बेटे हैं, क्योंकि ये 4 नंबर लिखा हुआ है। पहले तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए क्या लिखा हुआ है ना, नंबर्स भी आपको पढ़ने आना चाहिए। अब ये कम बिनतन लका, ये कोई और कर ले आगे, किसी और को मौका देते हैं, किसी और को टाइम दे। यास्मीन आप आ जाए, आप पढ़, यास्मीन आप आ जाए। यास्मीन ने तो पढ़ लिया, वो दूसरी जो है क्या नाम है, शबाना, आप अभी तक नहीं आई, आप आएंगी माइक पे? जी बाजी। चलें पढ़िए नंबर 1। कम पढ़िए। माइक म्यूट हो गया आपका। जी जी। कम बिनतन लका, तुम्हारी कितनी बेटियां हैं? ली सबउ बिनातिन, बनातिन, यही तो बिनातिन। जो गलतियां मुझसे होती थी ना, वो मुझे पता होता है आप लोग भी करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल गलतियां होती हैं, वो सभी कर रहे होते हैं। तो बिनात, बिनतुन से बिनातुन नहीं होता, क्या होता है? बनातिन, बनातिन। जैसे ये इब्नुन से अबनाउन है ना, इब्नुन, इब्नुन में कसरा आता है, इब्नुन यहाँ कसरा था, इसी तरह ये अबनाउन, तो इसी तरह यहाँ पे आपका क्या है, बिनतुन से बनातुन। बिनातुन देखें कभी पढ़ा भी नहीं होगा आपने, बनातुन होता, तो बनातिन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, एक बात गौर से देखें कि इनके ऊपर किसी के ऊपर भी अलिफ लाम नहीं आ रहा। ये एक तो जमा आ रहे हैं, मुज़क्कर या मुअन्नस जमा आ रहे हैं, और दूसरा अलिफ लाम नहीं आ रहा उनके ऊपर। हालांकि मुदाफ इलैह पे तो अलिफ लाम आ सकता है, लेकिन आपने इनको नकीरा ही लगाना है। अकलामुन, अकलामिन लगाना है, अलिफ लाम नहीं लगाना। 5 कलम होंगे तो क्या अरबी होगी? 5 कलम, खमसतु अक़लामिन। वेरी गुड, खमसतु अक़लामिन। अल अक़लाम तो नहीं लगाया ना मैंने, हालांकि अब मुदाफ इलैह पे तो अलिफ लाम आ सकता है, तो हमने नहीं लगाना, हमने उसको नकीरा लाना है। अक़लामिन, बनातिन, अबनाइन, हाफिलातिन। तो ये बात भी ख्याल रखनी है। इस पे तो अलिफ लाम तनवीन दोनों नहीं आएंगे, इस पे आ सकता था लेकिन हमने लगाना नहीं है। आगे, कम जामिअतिन फी बलदिका, यूनिवर्सिटी में कितने, यूनिवर्सिटी में कितने बलदिका नहीं, फी बलदिका, इन योर कंट्री, कंट्री में। अच्छा, हाँ, तुम्हारे मुल्क तुम्हारे में कितने, कितनी, तुम्हारे मुल्क में कितने
यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, तो फी बलदी का कम जामियतन, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं फी बलदी के तुम्हारे कंट्री में। तो अभी हम क्या बोलें, मेरे कंट्री में ऐसे बोलेंगे ना, मेरी कंट्री से शुरू करेंगे ना, मेरी कंट्री में 5 या 3 यूनिवर्सिटी हैं। चले 3। तो क्या मेरे मतलब मेरे मुल्क में आप इसको फी ही भी फी कर सकते बलदी का, हाँ, फी भी लिख सकते हैं। फी बलदी कर देना, फी बलदी मेरे जी, मुल्क फी में, बलदी का, बलदी आगे फी बलदी का सलासतु, सलासा सलासा क्यों भाई, सलासा इधर यूनिवर्सिटी मोनस है ना। वो ठीक है, बट पेश भी तो आ सकती है ना। सलासु। सलासु हाँ, फी बिलादी सलासा तब आएगा जब मफूल बनाएंगे, तो पीछे फेल होगा, जुमला फेलिया होगा, तो फिर मफूल बनेगा तो जबर आएगी। ठीक है, सलासु आगे क्या आएगा? सलासु यूनिवर्सिटी, जामियात, जामियातिन। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, मजिद फजिद। अगला नंबर 10, कम किताबन इंदका, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। हिंदी, हिंदी समानियतु, किताबें हैं ना, तो यहाँ पे अब अदद मुअन्नस आएगा, समानियतु आ जाएगा। पहले हमने समानी किया था, समानियतु। आगे कुतुबुन, कुतुबुन, कुतुबे, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाहिद आ रहा है, लेकिन तर्जुमा हम तो किताबें कर रहे हैं, है ना, वाहिद आ रहा है। हाँ, किताबें तर्जुमा, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, हालांकि वाहिद आ रहा है, इसको कहते हैं तमयीज। वाहिद होता है, मंसूब होता है और नकिरा होता है। यहाँ पर जो आ रहा है ये महदूद आ रहा है। महदूद जो होगा आपका, वो आपका जमा होगा अलिफ लाम के बगैर, नकिरा हो गया, जमा होगा और नकिरा होगा और मजरूर होगा। महदूद क्या होता है? जमा, नकिरा और महदूद। नकिरा का मतलब उस पर मार्फा नहीं हो सकता, और क्या, मजरूर। ये हर एक अपना अपना इसीलिए इरादा, मैम उस पर अलिफ लाम नहीं आता ना। हाँ इसलिए नहीं आ रहा, नकिरा है ना, और जमा है, ऑलवेज जमा है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, जमा है। ये भी आपका मुजक्कर मुअन्नस हो सकता है, ये भी। अभी हमने देखा था हाफिलतन, अब यहाँ पे देखे तमयीज जो है ये मुअन्नस आ रहा है, लेकिन वाहिद ही आ रहा है, मंसूब ही आ रहा है, तो ये मुजक्कर जरूरी नहीं, ये मुअन्नस भी हो सकता है तमयीज। ठीक है, और यहाँ मुजक्कर आ रहा है, यहाँ भी मुअन्नस आ रहा है, यहाँ भी मुअन्नस आ रहा है। तो जो आपका तमयीज होता है वो मुअन्नस हो चाहे मुजक्कर हो, उसने वाहिद ही होना है और मंसूब ही होना है। ठीक है, इसने आपका क्या होना है, मुजक्कर या मुन्नस, या जमा जो है ये आपका मुजक्कर या मुन्नस दोनों सूरतों में आ सकता है, नकरा होगा और मजरूर होगा। अच्छा, समानिया तो कुतुबिन आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मुझे आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, मेरी मेहनत जो है ना वो, अच्छा अब इसमें तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज में, ये आप खुद कर लीजिएगा। अब जैसे ली है तो यहाँ पर आपका ये मादूद है, ये अदद है, अदद को आपने अरबी में लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक करके बताएं जरा, आप ही करें। जी, ली अरबातु इख्वातिन, अरबाअतु इख्वातिन, वेरी गुड, माशाल्लाह। आगे, वसलासु अखवातिन, गुड, माशाल्लाह, गुड। ठीक है, इसी तरह ये क्या होगा, मुहम्मदुन लहू खमसतु अबनाइन वसमानिया बनातिन। नहीं, समानी होगा, समानी होगा, ये मुजक्कर है। ठीक है, समानिया तू ऊपर लिखा था ना मैंने, यहाँ पे ये मोनस लिखा था मैंने, कुतुबुन के साथ, कुतुबिन के साथ मैंने सलमानिया मोनस लिखा था। यहाँ पे बनात है तो मुजक्कर आएगा समानी।
इसी तरह ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी, कोशिश कीजिएगा जरूर। ये जो स्पून फीडिंग है ना, ये गलत है। तो एक जगह क्या आएगा, अशरतु आएगा, और एक जगह क्या आएगा, अशरू आएगा, ये ख्याल रखना है। बाकी मुश्किल नहीं है, आप करिएगा। और फिर वो बता रहे हैं कि काउंट फ्रॉम, अच्छा ये भी मुश्किल नहीं कि साइज, इसमें उन्होंने कह रहे हैं आप लोगों को कि काउंट फ्रॉम 3 to 10, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एज मादूद। इसको आपने मादूद बनाना है। तो मादूद के क्या होता है, मादूद जमा होता है, मुअन्नसी बनेगा और मजरूर बनेगा, नकरा और मजरूर बनेगा। तो इसको जब मादूद बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक तो मजरूर होगा या और दूसरा जमा होगा, और तीसरा क्या होगा, उसके ऊपर अलिफ नकिरा होगा, अलिफ लाम नहीं होगा। तो ये आपने इसके साथ फिर अदद जो है मुज़क्कर लगाना है। तो 3 to 10 आपने करना है। तो आप ऐसे करें, मैं आपको थोड़ा होमवर्क लाइट कर देती हूँ। आप इसको ना, इसको 3 के अदद के साथ बना लीजिएगा, इसको 4 के अदद से बना लीजिएगा, इसको 5 के अदद से बना के, इसको 6 के अदद से। ये तो कह रहे हैं कि हर एक को 3 से 10 तक लिखो, हर एक जो मादूद है उसको 3 से 10 तक की गिनती में लिखो। लेकिन मैं आपके लिए हल्का कर रही हूँ, इसको सिर्फ 3 के साथ लिखें, इसको सिर्फ 4, 5, 6 और 7 के साथ लिखें इसको, और इसको 8 के साथ, ठीक है ना। और बिल्कुल आपके कलिमातुल जदीदा आ गए। मजल्ला, मजल्ला क्या होता है, मैगजीन, मजल्लातुन इंडोनेशिया, ये आपको पता है। अल हरफु, हर्फ होता है, इसकी जमा आरुफ, ठीक है ना, हुरूफ भी होती है और आरुफुन भी होता है। अल कलिमातु कलिमातुन। चलिए, किसी तरीके से आपका लेसन पूरा हो गया। फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट वीक, अभी हिम्मत नहीं है सब में, ठीक है। तो इसको एक्सरसाइजेस, 2 एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश कीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। और एक दफा जरूर रिकॉर्डिंग को सुने, जिसको नहीं समझ आई वो जरूर सुने, जिसको आ गया वो ना सुने। ईमान दानिश ने भी क्लास ज्वाइन की है। ईमान दानिश आपने रिकॉर्डिंग सुननी है लाजिम, मैं अभी डाल दूंगी। बाकी सब ने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, ठीक है। दुआ कर लें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत आप लोगों का बहुत बताओ, आपकी क्या मैं कहूँ, धन्यवाद कहूँ, जज़ाकल्लाह खैर कहूँ। आप लोग इतना टाइम देते हैं, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सबसे